Hello guys, welcome back to my channel HK Official. Yes, I'm there with you with the unit number 4 of SME, that is vehicle systems. Yes, in this video I'm going to cover the complete unit in one shot. You are going to clear all the topics and all the important concepts of this unit very easily after seeing this video. So hope you will understand each and every concept, like I have made many one shots earlier also. So as your exams are approaching, there is not much time, so we are going to see each and every topic in one shot itself. Okay, so this topic also I have taken. Yes, it is a huge topic, but yes, we will cover it in short, and yes, I'm going to cover each concept very deeply, and you will be getting each and every concept very clear after seeing this video. So till the time, if you have not subscribed to my channel, please go and hit the subscribe button, and after you watch the video, if you like it, then please like it also. So without wasting our time, let us delve into our unit number 4, that is vehicle systems. The topic itself suggests us that we are going to study about the system of vehicles. Whatever systems are present in the vehicles, those we are going to learn in detail. So in short, in this page I have written what all topics are there which we have to cover in this unit number 4. See, first of all, we are going to delve into fundamental components that make up the vehicle systems. Okay, see, many students comment to teach in Hindi. See, I am not I can teach in Hindi also, but still you have to write your paper in English, so it is better that you understand in English. Otherwise, wherever it is needed, I will talk in Hindi. Okay, now here, first of all, what we have to study? We have to study about the fundamental components, very small components, like we use clutch, we use gears. Okay, so those things we are going to see, that are the fundamental components in the vehicle system. Then we'll begin with an exploration of chassis layout. Now, what is chassis layout? See, अगर हम chassis layout देखें ना, chassis एक fundamental foundation है. That means अगर हम structure देखें, हम अपना कार देखें, तो कार का बाहर से structure कैसा दिखता है? That complete foundation is nothing but the chassis. Okay, so that layout we are going to see. Then examining how the framework sets the foundation for the entire vehicle, like how, which things we are needed, like whatever components we need that to make that foundation, we are going to see. Then moving forward, we'll dissect the steering system also. जो steering हम use करते हैं, वो steering कैसे हमारे wheels को apply होता है, कैसे वो power transmit करता है, that steering system we are going to see. Then suspension system also. Then braking system, cooling system. Now where this cooling system is used to cool our engine, हमारा इंजन कम्प्लीटली वर्किंग पोजीशन पे होता है, एंड हीट जो है हमेशा जनरेट होती रहती है उसमें से, so उसको कूल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट कूलिंग इफेक्ट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट सिस्टम्स आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. देन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो देयर, अंडरस्टैंडिंग देयर इंडिविजुअल रोल्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ओवरऑल परफॉर्मेंस. सो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया है कि हम कौन से सिस्टम्स को देखने वाले हैं. हमारे लिए स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो कि हमें इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं. ओके, सो आवर जर्नी एक्सटेंड्स टू दिस रेलम ऑफ देन इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स ऑल्सो. यस, हमने अपने लास्ट वन शॉट में देखा है कि हमने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में पढ़ा है. सो दैट कंप्लीट थिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस ऑल्सो. सो दैट पार्ट आई हैव स्किप, यू कैन cover it from that one shot also. Then we have some other system that innovative technologies are used, like some of the things, like many new technologies are there in modern system, like we are using ABS system nowadays, airbags are there. Okay, so these all things also we are going to study. So whatever systems which are important for a vehicle to run, that whole things we are going to see. So let us start with the chapter. तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे लिए ऑटोमोबाइल. यस, हमने यूनिट नंबर 3 में भी ऑटोमोबाइल के डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया था. सो व्हाट इज ऑटोमोबाइल? वी ऑल बेटर नो दैट इज, इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड एंड व्हील व्हीकल प्रोड्यूसिंग पावर विद इन, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड और पैसेंजर्स ऑन द रोड. ओके, वी ऑल नो व्हाट इज दैट. सिंपल हमें क्या करना है, डेफिनेशंस में हमें थोड़े बहुत जो वर्ड्स है ना, वो हमारे दिमाग में रखने हैं. लाइक प्रोड्यूसिंग पावर विद इन, हमारी जो ऑटोमोबाइल है वो पावर खुद से जनरेट करती है. So this part is important while you are writing the definition. So I am telling you which all words you have to consider while writing it also. Okay, then automobile, what it is a self-propelled. That means it
runs on it, okay, self running vehicle, that is, and what happens, it is used for transporting goods and or passengers. So goods transport करने के लिए vehicle अलग होगी, passengers transport करने के लिए, okay, so these all are automobile. Simple words में अगर मैं बोलूँ, so an automobile is nothing but a machine that people use for transportation, and it has wheels, engine, structure to carry passengers, goods, okay. So what all are the examples for this automobile? That is moped, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक्स, बसेस, ओके. ऑटोमोबाइल्स के एग्जांपल्स तो हम बहुत मन से भी लिख सकते हैं, ओके. सो व्हाट इज आवर ऑटोमोबाइल, हमें डेफिनेशन लिखना है एंड देन वी हैव एग्जांपल्स, ओके. Then we have the first part of the unit, that is chassis layout. अब मैंने chassis का मतलब आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है. What is chassis? Chassis is the foundation or the structure of your vehicle, okay? तो उसका layout कैसे होगा? अब ये chassis layout जो है ना, ये हमें 4 parts में है. हमारे पास 4 parts है इस मतलब हमारे सिलेबस के अंदर कि हमारे chassis के क्या क्या टाइप्स होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम बाद में देखते हैं, बट हमें chassis का जो हमारा layout है वो कैसा होना चाहिए एक सिंपल फॉर्मेट के अंदर, दैट इज ऑन दिस स्लाइड. सो द लेआउट इंडिकेट्स द रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ ऑल ड्राइव related components, the various components, their relative location and purpose are as follows. तो आप देख सकते हो, आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा. आपको इसे एक कार कंसीडर करना है. आपको व्हील्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो व्हील्स को आपको कंसीडर करना है. आई थिंक आपको अब तक चैसिस लेआउट क्या होता है ये तो कंप्लीटली पता चल गया होगा कि चैसिस लेआउट एक हम फाउंडेशन या एक स्केलेटन ऑफ कार बोल सकते हैं, ठीक है. इट शोज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक इंजन, व्हील्स आर प्लेस्ड. सो आपको इसको एक पजल की तरह इमेजिन कर लेना है, या मतलब कहाँ कहाँ कौन से पीसेस हमें फिट करना है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. अब आप देख सकते हो ये मैंने एक इंजन बनाया है, ठीक है. यहाँ पर इंजन होना इंपॉर्टेंट है. सो ये इंजन का पार्ट है. कहाँ पर आपको शो करना है कि इंजन कहाँ प्रेजेंट है. तो इस लेआउट के अंदर आपको इंजन कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड को आपको फ्रंट साइड और फ्रंट एक्सल कंसिडर करना है, एंड जो राइट साइड है आपको हाइंड साइड कंसिडर करना है, रेयर साइड ऑफ द कार, ओके. सो आप इंजन देख सकते हो, इंजन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्रंट साइड में प्रेजेंट है. उसके बाद आप देख सकते हो कि रेडिएटर प्रेजेंट है. रेडिएटर का यूज क्या है हम सब सीखेंगे, लाइक वॉट एवर मतलब क्या क्या चीज़ें क्या वर्क कर रही है ना हमारे सिस्टम के अंदर, व्हीकल के अंदर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी. तो इंजन समझ गया हमें, इधर इंजन कहाँ प्लेस्ड है, इंजन किस चीज़ के लिए यूज होता है, हम इंजन को हमारे कार का हार्ट बोलते हैं, राइट. सो इट गिव्स पावर टू मेक इट मूव. तो हमारी जो कार मूव कर रही है ना, सो वट एवर पावर इट इज नीडेड टू मूव इट, सो दैट इज गिवन बाय द इंजन. देन रेडिएटर का काम क्या है कि हमारा इंजन जब चलता होता है देन इट सम हीट इट प्रोड्यूस्ड, ओके. सो देन इस हीट को हमें कूल डाउन करना पड़ता है. सो दैट कूलिंग इफेक्ट इज डन बाय आवर रेडिएटर. सो यहाँ पर रेडिएटर भी कहाँ प्रेजेंट है, इंजन के आगे प्रेजेंट है, ओके. देन अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, क्लच, गियर बॉक्स, ठीक है. देन आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट प्रेजेंट है. यूनिवर्सल जॉइंट का भी क्या मकसद है, ये कनेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द व्हीकल को, अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द मूवमेंट, ओके. तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मूवमेंट के अंदर बहुत जरूरी है. तो दैट इज गिवन बाय दिस कार जॉइंट्स, वी कॉल देम यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है. फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, डिफरेंशियल प्रेजेंट है. डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल का भी फंक्शन हम देखेंगे. ये दो व्हील्स को कनेक्ट करता है एंड दोनों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ओके. सो ये डिफरेंशियल हो गया. देन आप देख सकते हो ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ तक ये रेयर एक्सल है. देन ये पूरा क्या है, ये फ्रंट एक्सल है, ओके. आई होप यू अंडरस्टूड इट. देन यहाँ पर ये गियर बॉक्स प्रेजेंट है, क्लच के पीछे ही एकदम गियर बॉक्स प्रेजेंट होता है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कॉइल स्प्रिंग प्रेजेंट है. कॉइल स्प्रिंग का काम क्या होता है, कार शॉक एब्जॉर्ब करना, ठीक है. जब भी कोई भी हर्डल आ जाए या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज आ जाए तो उस राइड को स्मूथ बनाने का काम जो है हमारा कॉइल स्प्रिंग करता है. सो आई होप कि आपको चैसिस लेआउट जो है ये कंप्लीटली समझ में आ गया है, ठीक है. अब हमारे चैसिस लेआउट के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ठीक है. अभी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, जो कि मैंने यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लिखा है. सो वेरियस कंपोनेंट्स, देयर रिलेटिव लोकेशन एंड पर्पस, ठीक है. इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड आउट दिस, और एग्जाम्स के टाइम पे आपको इसको रीड करना कंपलसरी है. तो वट एवर थिंग्स मैंने आपको बताई अभी, चैसिस क्या होता है, एक स्केलेटन फ्रेम है व्हीकल का, ठीक है, वही लिखा है. इंजन क्या करता है, इट इज अ इंटरनल कंबशन इंजन विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल रोटरी एनर्जी, ओके. या फिर सिंपली आप लिख सकते हो कि पावर टू मूव द व्हीकल इज गिवन बाय आवर इंजन, ठीक है. क्लच का
का क्या काम क्या होता है, अब जिनको भी गाड़ी चलाना आती है दे ऑल नो व्हाई क्लच इज यूज्ड, व्हाई गियर्स आर यूज्ड, ओके, बट स्टिल एज वट एवर यू ऑल नो एज योर नॉलेज, यू हैव टू राइट अप इन योर पेपर. Just these systems are there which you have to gain the knowledge about how they work, what all the parts are there, okay. So here clutch present, clutch क्या करता है, it connects after the engine and transfer the drive from engine to gearbox. simple clutch का अगर मैं आपको function बताऊं तो ये क्या करता है, it works like the car's connection switch, helping टू चेंज द गेयर्स स्मूथली. हम क्लच का प्रेस करते हैं जब हमें गेयर चेंज करना होता है, राइट. सो जब हम गेयर चेंज करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, इंजन जो है, हमें इंजन तो बंद नहीं करना ना, इंजन बंद कर देंगे तो हम हर वक्त क्या इंजन ही बंद करते रहेंगे गियर चेंज करने के लिए. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टॉप इंजन एवरी टाइम व्हाइल वी हैव टू स्लो डाउन और फास्टन आवर व्हीकल. दैट टाइम व्हाट वी डू, वी चेंज द गियर बाय यूजिंग क्लच. अब क्लच कैसे यूज़ करते हैं, क्लच यूज़ करने से हमारा जो इंजन है वो डिसएंगेज हो जाता है हमारे गियर बॉक्स के साथ, ठीक है. तो हमारा इंजन जब इन गियर बॉक्स के साथ डिसएंगेज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा इंजन वर्क करता रहेगा बट हम गियर चेंज कर देंगे एंड अगेन उसको जो है इंगेज कर देंगे. सो इसके लिए जो है हम क्लच यूज करते हैं. सो जस्ट ट्राई, यू कैन राइट इट इन सिंपल वर्ड्स लाइक दिस वर्क्स लाइक द कार्स कनेक्शन स्विच, ओके, हेल्पिंग चेंज गियर्स स्मूथली. उसके बाद गियर बॉक्स होता है. गियर बॉक्स क्या करता है, द गियर बॉक्स इज द नेक्स्ट एलिमेंट इन द ड्राइव चेन. इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी वेरिएशन ऑफ टॉर्क अवेलेबल फ्रॉम द इंजन टू द प्रोपेलर शाफ्ट. अब आप बोलोगे प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है. अब आप ट्रक्स, अगर आपने ट्रक्स देखे होंगे तो ट्रक्स के एकदम बॉटम सरफेस में एक शाफ्ट मूव होती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है. तो वो शाफ्ट का यूज क्या है, अगर हमारा इंजन सपोज फ्रंट में है, फ्रंट एक्सल में इंजन प्रेजेंट है एंड देन हमारी जो पावर है वो रेयर व्हील्स के ऊपर जा रही है, जो हमारे पीछे के व्हील्स हैं उसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है और इंजन हमारा फ्रंट में है. तो पावर ट्रांसमिट होने के लिए जो मतलब शाफ्ट यूज होती है, दैट शाफ्ट इज नथिंग बट योर प्रोपेलर शाफ्ट, ओके. उसका भी हमारे पास फंक्शन है, एट द एंड वी आर गोइंग टू सी इट ऑल्सो. सो ये गियर बॉक्स का यूज क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो थिंक ऑफ इट एज द कार्स गियर मैनेजर, ओके, कंट्रोलिंग हाउ फास्ट और स्लो इट मूव्स. तो हमारी कार कितने फास्ट और कितने स्लो मूव कर रही है, ये फंक्शन हम गियर बॉक्स के ऊपर डालते हैं. यानी उसका जो फंक्शन है ये यही है कि हमारी कार कितनी फास्ट और कितनी स्लो मूव कर रही है. तो ये ड्राइवर के ऊपर होता है कि वो जितने वो चाहे वो गियर्स चेंज करके अपनी व्हीकल को उस मोशन में रख सकता है. तो दैट वाज अबाउट गियर बॉक्स. उसके बाद और कंपोनेंट्स हैं. प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया. इन बिटवीन गियर बॉक्स, आउटपुट शाफ्ट एंड द डिफरेंशियल ऑन द रेयर एक्सल. यानी जो डिफरेंशियल मैंने आपको दिखाया था जो कि दो व्हील्स के बीच में प्रेजेंट है, दोनों के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज डिफरेंशियल, ठीक है. तो डिफरेंशियल और गियर बॉक्स को जो कनेक्ट करता है दैट इज योर प्रोपेलर शाफ्ट, ओके. देन वी हैव डिफरेंशियल. डिफरेंशियल का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पर इट ट्रांसफर्स द ड्राइव फ्रॉम प्रोपेलर शाफ्ट टू द रेयर व्हील एक्सल. इट एंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्क बिटवीन द टू व्हील्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड्स, ठीक है. तो यहाँ से जो भी पावर आ रही है हमारे प्रोपेलर शाफ्ट से, जो भी हमें पावर मिल रही है वो हमें रेयर व्हील एक्सिस पर जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है. सो वो वर्क हमारा डिफरेंशियल करता है. सिंपल लैंग्वेज में इट हेल्प्स द व्हील स्पिन एट डिफरेंट स्पीड्स लाइक द कार्स टर्निंग द हेल्पर, ठीक है. डिफरेंशियल का भी हमने मतलब समझ लिया. इन डिटेल वी आर गोइंग टू सी. देन रेयर एक्सल और फ्रंट एक्सल, ये तो हमें पता ही है. रेयर एक्सल क्या होता है, इट कनेक्ट्स द व्हील टू द कार लाइक द कार्स बैक लेग्स, ओके. देन वी हैव फ्रंट एक्सल, दैट इज ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म. देन ये स्टब एक्सल क्या है, ये भी हम स्टब स्टीयरिंग मैकेनिज्म के अंदर कंप्लीटली देख लेंगे, ठीक है. एंड व्हील्स माउंटेड ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, ये फ्रंट एक्सल के बारे में बात हो गई. सो ये सब क्या था, चैसिस लेआउट. अब अगर सिंपली आपको चैसिस लेआउट के ऊपर क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन चैसिस लेआउट, तो आप ये चीजें लिखोगे. बट मोस्ट ऑफन इसके पार्ट्स मतलब इसके टाइप्स पूछते हैं. हमारे पास क्या क्या, देखो यहाँ पर और भी मैंने शॉर्ट में लिखा है कि व्हील्स जो है, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, देन रेडिएटर, इन सब का फंक्शन क्या होगा. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है. चैसिस लेआउट के अंदर मेजरली 4 टाइप्स होते हैं. फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव और वी कैन से ऑल व्हील ड्राइव. सो ये 4 टाइप्स जो है चैसिस लेआउट के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको मतलब बाई चांस 10% ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन चैसिस लेआउट एंड एनी वन ऑफ द टाइप ऑफ द चैसिस लेआउट. दैट टाइम यू कैन चूज योर ओन टाइप. बट अगर स्पेसिफिकली आपको पूछा गया कि फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव या फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, एक्सप्लेन इट, तो आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है एंड दैट विल बी मोर ईजियर. क्योंकि चैसिस लेआउट का
अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको वो भी एक्सप्लेन करना है एंड देन अदर एक टाइप भी एक्सप्लेन करना है. इंस्टेड आप एक टाइप एक्सप्लेन कर दो, दैट इज इनफ. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो ये क्वेश्चन मस्ट होता है ये यूनिट से. सो आई होप कि आप यू आर पेइंग बेटर अटेंशन ओवर दिस थिंग. ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव. अब आपको टॉपिक से ही क्या समझ में आ रहा है? फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव. फ्रंट में इंजन प्रेजेंट है, हमारे जो चैसिस है, ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है कार का, उसके फ्रंट साइड में इंजन प्रेजेंट है. और रेयर व्हील ड्राइव का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पावर है वो हम कहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं? हमारे रेयर व्हील्स. रेयर का मतलब बैक साइड के जो हमारे व्हील्स है ना, वहां पर हम हमारी पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं टू मूव द कार. तो ये पावर जनरेट फ्रंट में हो रही है और हमारे जो पावर ट्रांसमिट करने वाले व्हील्स हैं वो कहाँ है? रेयर में है. ठीक है, मतलब हमारे जो व्हील्स हैं वो रेयर साइड में है. तो ये वाला चैसिस लेआउट कैसा दिखेगा? दैट इज द फर्स्ट टाइप. तो आप जो है डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, डायग्राम के अंदर से हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो, सिंपली हम देख सकते हैं, हमें पता है कि इंजन जो है फ्रंट में प्रेजेंट है, तो हम इंजन को ऐसे फ्रंट में बनाएंगे. ठीक है, आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप अपना डायग्राम बनाएंगे ना, इट इज़ वेरी सिंपल. दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड देन इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू ड्रॉ. जस्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा कार का जो है एक ऐसा लेआउट बना देना है. ठीक है, जैसे मैंने सिंपली बनाया है. उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट क्या बनाना है? इंजन. ठीक है, ये वाला इंजन आप क्रिएट करेंगे. ठीक है, इस इंजन को आपको फ्रंट में रखना है अगर आप फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आपको इंजन के सामने एकदम रेडिएटर बनाना है. ठीक है, ये रेडिएटर का वर्क क्या है? टू कूल डाउन द सिस्टम, वी ऑल नो दैट. तो ये रेडिएटर बना दिया. उसके बाद हमारे ये देखो, ये जो है यूनिवर्सल जॉइंट्स प्रेजेंट है. और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये क्या है? ये छोटा सा ये है कॉइल स्प्रिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये कॉइल स्प्रिंग का काम क्या होता है? हमारे जो भी मतलब हर्डल्स हैं इनको सॉफ्ट करने का, हमारी राइड को स्मूथ करने का जो है इनका काम होता है. तो ये कॉइल स्प्रिंग जो है ये हमारे ये व्हील्स है. ठीक है, ये जो है ये व्हील्स प्रेजेंट है, तो इन व्हील्स के साथ जो है कनेक्टेड है. तो आई होप कि आपको इतना समझा होगा कि आपको पहले क्या बनाना है. आप एक सिंपल एक रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि आपके कार रिजेंबल करेगा. देन यू हैव टू मेक इंजन. इंजन के एकदम फ्रंट में रेडिएटर प्रेजेंट होना चाहिए एंड इंजन के दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में आपके फ्रंट व्हील्स प्रेजेंट होने चाहिए. आई होप इधर तक आपको क्लियर है. अब इंजन के एकदम पीछे आपको जो है ये क्लच और गियर बॉक्स बनाना है. ठीक है, क्लच और गियर बॉक्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको ऐसे ही क्रिएट करना है. आप चाहो तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू ऑल. तो आपने इंजन बना दिया, इंजन के पीछे क्लच बना दिए एंड गियर बॉक्स बना दिया. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कनेक्शन कैसा है? व्हील्स का, गियर का, ठीक है, क्लच का एंड व्हील्स का. तो ये व्हील्स, इंजन और क्लच कैसे कनेक्टेड हैं आप देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये गियर बॉक्स प्रेजेंट है. अब ये जो ये कंप्लीट ये जो रॉड जा रही है ना, दिस इज योर प्रोपेलर शाफ्ट. अब इस प्रोपेलर शाफ्ट का यूज इस टाइप में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फ्रंट इंजन और रेयर व्हील ड्राइव पढ़ रहे हैं. हमारा इंजन फ्रंट में है और हमें पावर कहाँ ट्रांसमिट करनी है? रेयर व्हील में. ठीक है, तो वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक रॉड की जरूरत है, दैट इज आवर प्रोपेलर शाफ्ट. तो ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गया एंड यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल प्रेजेंट है जो कि रेयर एक्सल पे है. रेयर व्हील्स जो है उसके साथ कनेक्टेड है. देन यहाँ पर ये रेयर व्हील्स हो गए दोनों भी. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये लीफ स्प्रिंग है. ठीक है, लीफ स्प्रिंग अगेन ये राइड को हमारे स्मूथ करने का काम करता है. सो दैट इज द थिंग, ओनली दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ. अगेन मैं आपको एकदम सिंपल में बता दूंगी. आपको एक पहले रेक्टेंगल टाइप बनाना है जिसको आप एक कार रिजेंबल करोगे. ठीक है, देन आपको फ्रंट में इंजन बनाना है और इंजन के आगे रेडिएटर बनाना है. फिर इंजन के लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको लीफ कॉइल स्प्रिंग के साथ व्हील्स कनेक्ट करने हैं एंड देन इंजन के पीछे क्या कनेक्ट होगा? क्लच एंड क्लच के एकदम पीछे प्रेजेंट होगा गियर बॉक्स. अब ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये एक रॉड के साथ कनेक्टेड होगा. ये रॉड क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट होती है एंड ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? आप देख सकते हो यूनिवर्सल जॉइंट्स. ये यूनिवर्सल जॉइंट्स का काम क्या होता है कि एकदम सिंपल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जॉइंट्स के अंदर ताकि हमारी व्हीकल मूव होने में स्मूथ हो सके. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट्स प्रेजेंट है जिससे हमारा प्रोपेलर शाफ्ट अपनी पोजीशन पे है. देन यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंशियल प्रेजेंट है ये. उसके बाद डिफरेंशियल से जो है हमारे दोनों भी व्हील्स कनेक्टेड है, हमारे रेयर व्हील्स. सिंपल डायग्राम. ओके, नथिंग इज देयर, जस्ट यू हैव टू कीप विच थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन वेयर और ऑन विच लोकेशन. तो ये डायग्राम हो गया हमारे फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव का.
अब यहाँ पर है उसका फंक्शन। आई होप कि आपको फंक्शन लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें अब कंसेप्ट समझ गया है क्या है इस लेआउट के अंदर। चैसिस लेआउट जो हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, हमारा इंजन फ्रंट में है एंड हमारा जो व्हील है ट्रांसमिट हो रही है हमारी पावर वो रेयर व्हील्स पे हो रही है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोपेलर शाफ्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही फंक्शन आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट में आई हैव रिटन दैट इट इज द मोस्ट कन्वेंशनल टाइप ऑफ लेआउट एंड एज द नेम सजेस्ट द इंजन इज माउंटेड ऑन द फर्स्ट front part of the vehicle and the drive is transmitted to the rear axle. The drive chain in this layout is, अब देखो ड्राइव चेन कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन में पावर जनरेट होगी, देन क्लच के पास पावर जाएगी, पावर देन इट विल गो टू गियर बॉक्स एंड देन यूनिवर्सल जॉइंट्स से इट विल बी गेटिंग ट्रांसमिटेड ऑन द प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ देगा, पीछे डिफरेंशियल में देगा एंड रेयर एक्सल से दोनों व्हील्स में चली जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट द ड्राइव चेन। आई होप आपको एकदम सिंपल लगा होगा। अगर आपको डायग्राम समझाए then you are going to write the functions on in your words also. it is very simple. तो ये ड्राइव चेन होगी। आपका फर्स्ट पॉइंट में आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम हो गया, उसके बाद आपको 2 और 3 पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। पहले तो मैंने उसका फंक्शन में मतलब जो भी उसका मतलब है फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव उसके बारे में लिख दिया, और नीचे मैंने जो ड्राइव चेन है वो बता दी, ठीक है। पहले इंजन में पावर जनरेट होगी, इट विल बी गेटिंग ट्रांसमिटेड टू क्लच, देन गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, एज पर योर डायग्राम। आपने डायग्राम जैसे बनाया है ना वैसे ड्राइव चेन में आपको लिख देना है। एट लास्ट वो रेयर व्हील्स तक पावर जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन इट मे कम फॉर 6 मार्क्स, इट मे कम फॉर 7 to 8 मार्क्स ऑल्सो। सो आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है, डायग्राम बनाना है, फंक्शंस लिखना है और 2-3 पॉइंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखना है एंड यू आर ओवर विद योर क्वेश्चन एंड यू विल गेट इट कंप्लीट मार्क्स ऑफ इट। ओके, सो डोंट वरी, मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए, आपको डायग्राम बता दिया और फंक्शंस बता दिए। 2 to 3 पार्ट्स में आपको पॉइंट्स में फंक्शन लिखने हैं। अब एडवांटेजेस क्या होगी इसकी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ व्हीकल कैरीज द इंजन वेट एंड रेयर एक्सल कैरीज द पैसेंजर वेट। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि हमारा जो चैसिस का लेआउट है, फ्रंट में इंजन प्रेजेंट है, पीछे हमारे रेयर व्हील्स में जो है वो पावर ट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब फ्रंट में और बैक साइड में दोनों का भी जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है, राइट। तो अगर हम सीसॉ इमेजिन करें तो इंजन फ्रंट में है और हमारे जो पैसेंजर्स हैं, रेयर व्हील्स हैं, वो सब बैक साइड में प्रेजेंट है। तो हमारी जो कार होगी ना वो स्टेबल होगी एंड ईजी टू हैंडल होगी। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको समझा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंपल फ्रंट एक्सल डिजाइन विथ स्टीयरिंग मैकेनिज्म। अब आगे सिर्फ इंजन प्रेजेंट है और हमारा स्टीयरिंग सिस्टम प्रेजेंट है, तो आगे का जो हमारा पार्ट हो गया वो जरा सिंपल हो गया, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। with the steering mechanism making it easier to design and maintain also, हमें maintain करने में भी उसको easy होगा because it is not that much complicated। थर्ड पॉइंट क्या है, increased luggage carrying capacity at rear, यानी कि फ्रंट में, अब देखो फ्रंट जो है वो ज़्यादा क्लचर्ड नहीं है, इसके वजह से there is more space at the back। तो हमारा लगेज और स्टोरेज जो भी हमें रखना है तो पीछे जो है हमें साइज स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। सो इट इज मेकिंग कन्वीनियंट फॉर ट्रैवल। देन वी हैव linkages controlling the engine are short simple such as clutch, accelerator, linkages etc। यानी कि हम जो इंजन को हम अपने कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने के जो कंपोनेंट्स हैं वो मतलब वो सिंपल कंपोनेंट्स है। लाइक वी आर यूजिंग क्लच, हम एक्सेलरेटर यूज कर रहे हैं, ब्रेक यूज कर रहे हैं, सो दीज आर ईजियर टू मैनेज। तो ये ड्राइविंग को जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब ऑपरेट करने के लिए इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर ड्राइवर। तो ये लिंकेजेस के बारे में बात हो गई। Then we have accessibility to various engine components is easier, यानी कि it's like having a open book with the engine in front, reaching and maintaining various components is easier। okay, so simplifying repairs are also there। then we have better engine cooling by taking full benefits of natural air stream flowing across the radiator। अब इसमें better engine cooling effect क्यों है, क्योंकि हमारा इंजन फ्रंट में प्रेजेंट है। अब जब भी हमारा इंजन फ्रंट में प्रेजेंट होगा तो अब हमारा रेडिएटर कम वर्क करेगा। कम वर्क क्यों करेगा, क्योंकि एयर से डायरेक्टली जो हमारा इंजन है वो ज़्यादा कूल होगा इंस्टेड
ऑफ यूजिंग रेडिएटर, तो रेडिएटर का जो काम है वो कम हो जाएगा. सो प्लेसिंग द इंजन एट फ्रंट, दिस अलाउज टू benefit the natural airflow, helping radiator cool more effectively. So this was about the advantages. So in front engine rear wheel drive setup not only provides a balanced and stable ride, but it also make maintenance and luggage handling a breeze. So this was all about the advantages of this layout. अब इसके थोड़ी disadvantages भी देख लेते हैं. अब it requires long propeller shaft to transmit the drive from gearbox to differential. अब जैसे इंजन और हमारे जो व्हील्स में पावर जिन पे जा रही है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसके वजह से हमें किसका यूज करना पड़ रहा है, प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करना पड़ रहा है. तो वो प्रोपेलर शाफ्ट जो है उसके यूज करने के वजह से ये एक डिसएडवांटेज है कि वो हमें वो यूज करना पड़ रहा है. वाई? एक तो उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई होता है. अदरवाइज हम अगर उसके कॉस्ट को भी निग्लेक्ट कर दें तो वो जो है नीचे सरफेस की जो है ना वो जगह ले लेता है, स्पेस ज़्यादा ले लेता है हमारे व्हीकल की. सो इट इज़ अगेन अ डिसएडवांटेज कि हमें इसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट का यूज़ करना पड़ रहा है. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, द रेयर फ्लोर हाउसेज द प्रोपेलर शाफ्ट एंड हेंस रेयर लेग स्पेस इज लिमिटेड. यानी कि जो हमारे पीछे की जो साइड है, मतलब अगर पीछे मतलब लाइक बैक साइड में अगर हमारे पैसेंजर्स बैठे हैं तो नीचे जो हमारे लेग की स्पेस होगी ना वो कम होगी, बिकॉज हमारे व्हीकल के सरफेस में प्रोपेलर शाफ्ट है. इसके वजह से हमें व्हीकल को ज़रा ऊपर रखना है, व्हीकल को रोड से थोड़ा ऊपर रखना है. इसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे की लेग स्पेस है पैसेंजर्स की उसको कम करना पड़ेगा. इसका मतलब कंफर्टेबल लेवल जो है वो कम है. किसके वजह से, प्रोपेलर शाफ्ट के वजह से. सो अगेन दिस इज ऑल्सो द सेकेंड डिसएडवांटेज. देन हायर नॉइस ट्रांसमिटेड फ्रॉम फ्रंट इंजन टू ड्राइवर केबिन. इसका मतलब क्या है, अब हमारा इंजन जो है फ्रंट में प्रेजेंट है, अब हमारा ड्राइवर भी ड्राइव कर रहा है तो वो भी फ्रंट में ही बैठा होगा, तो इंजन की जो नॉइस है वो सबसे ज़्यादा किधर आएगी, ड्राइवर केबिन के अंदर आएगी. सो दिस इज अगेन द डिसएडवांटेज. देन इट रिक्वायर्स लार्जर ब्रेक पैड्स एट फ्रंट व्हील्स बिकॉज ऑफ हायर वेट बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द फ्रंट व्हील्स बाय डिसलेरेशन. यानी कि अब आप कैसे थिंक कर सकते हो कि फ्रंट व्हील्स जो है ना वो हैवी लिफ्टर्स है. अगर ब्रेक लगा रहे हैं हम या फिर हमें एकदम मतलब स्टॉप करना है हमारी व्हीकल को, सो हमें ज़्यादा जो है ब्रेक पैड्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू हैंडल एक्स्ट्रा वेट ट्रांसफर टू देम. ठीक है, क्योंकि हमारे व्हील्स जो पावर ट्रांसमिट जिन व्हील्स पे हो रही है वो तो रेयर व्हील्स है, लेकिन तो हमें इसके वजह से फ्रंट व्हील्स पर जो है वो ज़्यादा जो मतलब ज़्यादा ब्रेक पैड्स पे ब्रेक देना पड़ेगा. ठीक है, सो वाइल फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव कार्स दे हैव एडवांटेजेस, दीज आर सम ट्रेड ऑफ्स टू कंसिडर. आई होप आपको समझा है कि आपको अगर एक आपको क्वेश्चन में आपको उसका आंसर लिखना है ऐसे लेआउट्स का, तो आप कैसे किस फॉर्मेट में जाओगे. अब मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको पहले डायग्राम बनाना है, देन उसका फंक्शन लिखना है एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इतने ही डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस लिखो, अब 2 to 3 पॉइंट्स में भी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंप्लीट कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट टाइप. अब आपको आगे के टाइप्स बहुत ईजी लगेंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट मच टाइम ऑल्सो. मैंने फर्स्ट टाइप को ज़्यादा टाइम दिया आपको समझने के लिए. आई होप आपने समझ लिया होगा कि आपको जैसा भी लेआउट आए तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है. तो सेकेंड टाइप आ गया है कि रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव. अब इसमें क्या होगा, हमारे फ्रंट पार्ट हमारे व्हीकल का बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारा इंजन भी बैक साइड में प्रेजेंट है और हमारा जो पावर है वो हमें रेयर व्हील्स को ही ट्रांसमिट करना है. तो आप देख सकते हो कि मैंने जो डायग्राम बनाया, अब आप यहाँ पर जो बनाया ना कार, वो आपको अपने डायग्राम में नहीं बनाना है, आपको सिंपल आपको बस इतना डायग्राम कंसिडर करना है. बट जस्ट फॉर कंसिडरेशन मैंने आपको ऊपर जो है वो कार ऐसे रिजेंबल कराई है. ठीक है, आप देख सकते हो कि फ्रंट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना, ये वाला पार्ट एकदम नॉर्मल है, नथिंग इज देयर. ओके, तो जस्ट हमें इसमें क्या कंसिडर करना है, रेयर साइड ऑफ द व्हीकल. आप देख सकते हो रेयर साइड वही स्ट्रक्चर है जो हमने वहां पर फ्रंट में बनाया था ना, बस वही यहाँ पर हमें बैक साइड में बनाना है और उसको खत्म कर देना है, बस इतना ही डायग्राम है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये इंजन प्रेजेंट है और इंजन के साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लच प्रेजेंट है. ठीक है, फिर क्लच के बाद हमारा गियर बॉक्स प्रेजेंट है. ठीक है, गियर बॉक्स जो है गियर बॉक्स इज प्रेजेंट एंड उसके बाद आप देख सकते हो यूनिवर्सल जॉइंट्स के साथ हमारे दोनों भी व्हील्स जो है वो यूनिवर्सल जॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है. बस इतना ही फंक्शन है. ये वाला तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज हमें आगे तो कुछ ही नहीं करना है. एंड आप अगर नोटिस करो तो इसमें एक चीज़ प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द प्रोपेलर शाफ्ट, क्योंकि हमें पावर को ट्रांसमिट अपोजिट साइड में करना ही नहीं है. हमारा इंजन भी पीछे है, यानी कि पावर जनरेट ही पीछे हो रही है व्हीकल के, एंड हमारे जो व्हील्स हैं वो भी जिनको हमें पावर ट्रांसमिट करनी है वो व्हील्स भी पीछे ही हैं. तो हमें उसमें रॉड यूज़
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो लेग स्पेस होगी पैसेंजर्स के लिए वो ज़्यादा होगी एंड द व्हीकल स्ट्रक्चर विल बी कंफर्टेबल। आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ लेट अस गो अहेड। सम फंक्शंस आई हैव रिटन हियर, ये फंक्शंस आप कंसिडर कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ लेआउट एलिमिनेट्स द नेसेसिटी ऑफ अ प्रोपेलर शाफ्ट। द इंजन इज माउंटेड एट द रेयर एंड ड्राइव पावर ट्रांसमिटेड टू द रेयर एक्सेल। वही मैंने जो आपको बोला, आपको प्रोपेलर शाफ्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। देन हमारा इंजन जो है वो रेयर साइड में है। अगेन तो जो हमें ड्राइव पावर जो हमें ट्रांसमिट करनी है ड्राइव को, वो भी रेयर एक्सल पे ही करनी है। अब यहाँ पर ड्राइव चेन क्या होगी, इंजन से पावर विल बी गोइंग टू बी टू द क्लच, देन गियर बॉक्स, देन यूनिवर्सल जॉइंट्स एंड डिफरेंशियल टू रेयर एक्सल। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है, प्रोपेलर शाफ्ट प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज द ड्राइव चेन इज सेम। ओके, सो ये हमारे फंक्शंस हो गए। देन उसके बाद हम देखते हैं सम एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस में हम क्या देखेंगे, देखो फर्स्ट क्या है, द फ्रंट एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ वेरी सिंपल डिजाइन एंड हाउसेज द स्टीयरिंग मैकेनिज्म ओनली। यानी कि हमारा जो फ्रंट एक्सल है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर अब तो इंजन भी प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज़ हाईली सिंपल। जस्ट हमारा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है वहाँ पर, हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, because of high weight on the driving axle provides excellent traction and grip on the steep wheels। ठीक है, जो भी वेट है ड्राइविंग व्हील्स का वो सारा बैक साइड में है, तो ग्रिप जो है वो स्टीप हिल्स के ऊपर अगर हम अपनी व्हीकल लेके जाएंगे तो ग्रिप अच्छी होगी। ठीक है, स्पेशली हम स्टीप हिल्स की बात करें तो। सो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज। देन रेयर फ्लोर कैन बी मेड फ्लैट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। अब हमारे पास प्रोपेलर शाफ्ट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नीचे जो सरफेस है वो कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। सो नो टनल अंडर द कार क्रिएटिंग फ्लैट रेयर फ्लोर। तो इसके वजह से हमें स्पेस भी ज़्यादा मिलेगी, कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगा। देन ड्राइवर केबिन इज वेल आइसोलेटेड फ्रॉम इंजन नॉइज। अब इस टाइम में इंजन जो है बैक साइड में प्रेजेंट है, इसका मतलब इंजन की जो भी नॉइस आएगी वो ना पैसेंजर्स के तक आएगी ना ही ड्राइवर केबिन में तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। सो दिस इज अगेन अ एडवांटेज। Then because of elimination of front engine packaging constraints, the front body can be designed as per the styling। यानी कि अब आगे हमारा इंजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हम आगे जैसा चाहें वैसा अपने कार को स्टाइल कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में देखेंगे तो नेचुरल एयर कूलिंग ऑफ इंजन इज नॉट पॉसिबल। अब पीछे अगर इंजन होता है तो हम उसको नेचुरल एयर के थ्रू मतलब कूल नहीं करा सकते, तो इस वक्त हमारा रेडिएटर यूज होता है, तो रेडिएटर भी हमें पावरफुल चाहिए अगर हमारा इंजन रेयर एक्सिस में प्रेजेंट है। देन इट रिक्वायर्स अ पावरफुल रेडिएटर फैन, अगेन द सेम थिंग। द क्लच एंड गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब भी हमें गियर्स शिफ्ट करना है या फिर क्लच ऑपरेट करना है, सो दिस कैन बी मोर इंट्रिकेट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड वेट एट द रेयर। क्योंकि जो सारा वेट है हमारी व्हीकल का वो पीछे ही प्रेजेंट है ना, रेयर व्हील्स में ही प्रेजेंट है, तो हमें क्लच और गियर शिफ्ट करते वक्त जो है ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी। Then because of higher weight concentration at rear, the vehicle has a tendency to oversteer while taking a sharp turn। So ये tendency है, अगर हम oversteer कर दें तो हमारी कार जो है या फिर जो भी व्हीकल है वो स्लिप हो सकती है, क्योंकि हमारा सारा व्हीकल का जो वेट है वो पीछे ही प्रेजेंट है। सो ओवर स्टीयरिंग की टेंडेंसी हमें ज़्यादा होती है, सो इट रिक्वायर्स अ केयरफुल हैंडलिंग। देन लगेज स्पेस एट फ्रंट इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू स्मॉल कंपार्टमेंट दैट हाउसेज द फ्यूल टैंक एंड स्पेयर व्हील। तो फ्रंट स्पेस जो है लिमिटेड है, इसके अंदर हमें स्मॉल कंपार्टमेंट ही मिलता है सिर्फ फ्यूल टैंक के लिए, और जो व्हील्स हैं हमारे फ्रंट बस उतना ही हमें साइज मिलता है, तो जो फ्रंट है उसके अंदर लगेज स्पेस बिल्कुल नहीं है। सो वाइल रेयर इंजन रेयर wheel drive cars, these offer unique advantages, there are challenges like cooling, handling and luggage space to consider। so these are some advantages, disadvantages। I hope कि आपको ये वाला भी second type of the chassis layout अच्छे से समझा होगा। let us go ahead। अब हमारे पास third है front engine front wheel drive। it is very opposite to the very recent one which we have seen। उसमें क्या था, rear engine rear wheel drive था, अब हम देखेंगे front engine front wheel drive, यानी कि इंजन भी फ्रंट में है और हमें जो पावर ट्रांसमिट करनी है अब वो हमें रेयर एक्सल पे नहीं फ्रंट व्हील एक्सल पर ही हमें पावर ट्रांसमिट करनी है। आप देख सकते हो द डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल। आपको
इंजन एज यूजुअल यहाँ पर ही प्रेजेंट है। देन आप देख सकते हो कि क्लच उसके एकदम बैक साइड में प्रेजेंट है, सेम लेआउट है सेम, बट जस्ट आपको टाइप कंसिडर करके बस वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्लच एंड गियर बॉक्स आप देख सकते हो जैसे एज यूजुअल दे प्रेजेंट होते हैं वैसे ही हैं। देन यूनिवर्सल जॉइंट्स के साथ जो है हमारे जो व्हील्स है ना वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। दिस वाज द लेआउट। आप देख सकते हो कि पीछे का जो पूरा साइड है बस व्हील्स प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। और हाँ, द मेन थिंग टू कंसिडर अगेन द प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द लेआउट फॉर योर फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। अब इसका फंक्शंस देख लेते हैं। दिस layout is the most compact layout. It is being popularly used on most hatchback cars in India. अब hatchback cars क्या होते हैं हमें पता है। If anyone knows they can comment. Like चलो अब मैं बता ही देती हूँ hatchback cars क्या होती हैं। hatchback cars वो होती हैं जिनको 5 doors हो। अब you will like 5 doors is consider आपके पास 4 doors जो as usual हमारी cars में होते हैं and the 5th door is your डिग्गी, that is again a door ना। So that door is considered as the 5th door and the cars with these 5 doors are known as hatchback cars. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा hatchback cars चलती हैं। So this layout popularly known for these hatchback cars in India. Then अब इसकी ड्राइव चेन कैसी होगी, सिमिलर ही होगी, हमें इसमें प्रोपेलर शाफ्ट यूज़ नहीं करना है। So engine, clutch, gearbox, then it will go to universal joints, differential, front axle and wheels. ठीक है, इतना ही पार्ट होगा, बट आपको जस्ट कंसिडर करना है ड्राइव चेन लिखते वक्त व्हील, फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल फॉर ईच केस, ठीक है। एंड प्रोपेलर शाफ्ट ऑल्सो आपको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको समझा होगा कि फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको क्या लिखना है। चलो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर कर लेते हैं। एडवांटेजेस के अंदर क्या आएगा, कॉम्पैक्ट डिजाइन फॉर व्हीकल, यानी कि व्हीकल जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि हमारे फ्रंट व्हील्स सारा वेट बेयर करते हैं हमारी व्हीकल्स का, और जो भी रेयर लेस क्लचर्ड थिंग्स हैं वो सब हमारे पीछे हैं। तो सिंपली आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि हमारा डिज़ाइन वो है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, हमारा फ्रंट में इंजन प्रेजेंट है एंड हमारी पावर भी फ्रंट व्हील्स पे ही जा रही है, ठीक है। सो ड्यू टू हायर वेट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील्स इट प्रोवाइड्स स्टेबल स्टीयरिंग ड्यूरिंग द टर्न्स। अब हमारा जो स्टीयरिंग व्हील्स है ना उनको हमें स्टेबल स्टीयरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इस वाले टाइप के अंदर। देन रिड्यूस्ड स्किडिंग ऑन द स्लिपरी रोड्स, तो फ्रंट व्हील्स पर ही जब हमारा कंट्रोल है तो हमारी जो स्किडिंग की जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है। अगेन नो प्रोपेलर शाफ्ट इज रिक्वायर्ड, इट हैज़ अ फ्लैट रेयर फ्लोर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। अगेन इसका भी जो सरफेस है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, फ्लैट होगा, प्रोपेलर शाफ्ट यूज नहीं है। सो बेटर इंजन कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल एयर स्ट्रीम फ्लोइंग अक्रॉस द इंजन रेडिएटर। तो कोई कोई पॉइंट्स आप कॉमन रख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इंजन फ्रंट में प्रेजेंट है तो हमें जो है रेडिएटर का ज़्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि हमारा इंजन नेचुरल एयर के फ्लो में ही ठंडा होता रहेगा, कूल डाउन होता रहेगा। सो दैट इज नॉट मच यूज ऑफ द रेडिएटर। सो ये सम कॉमन पॉइंट्स है, प्रोपेलर शाफ्ट रिक्वायरमेंट नॉट रिक्वायरमेंट, देन डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्पैक्ट है, वॉट एवर सिंपल डिज़ाइन, ये आप सब अपने मन से लिख सकते हो। एक बार जस्ट अंडरस्टैंड द कंप्लीट थिंग। अगर स्टिल आपको किसी भी चीज़ में डाउट है रिवाइंड द वीडियो एंड सी। सो आप जितना अच्छे से समझोगे ना इट इज़ मतलब उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम्स में वर्ड्स याद आएंगे कि हाँ मुझे ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। अगर आप मतलब लर्न करके जाओगे ऐसी चीज़ें सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर देम ड्यूरिंग एग्जाम। सो आप सिस्टम से अलग कर दोगे अगर आप लर्न करके जाओगे, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड ये थिंग। तो आप बहुत इंटरेस्ट से भी पढ़ सकते हो कि हम व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। So just concentrate. I'm not telling you to means draw each and every drawings structures and write each and every notes. I'm not telling you to do that. I'm just saying कि आपको कैसे ध्यान में रखना है, आपको एक ही डायग्राम प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बोल रही हूँ आपको चॉइसेस लेआउट का जो मैंने वेरी फर्स्ट डायग्राम बताया है आपको वही फॉलो करना है। और अगर फ्रंट इंजन है तो आपको उस हिसाब से अपने डायग्राम को मॉडिफाई करना है। वी आर इन इंजीनियरिंग, हमें पता है कि हमें क्या चीज़ किस वक्त करनी है, ठीक है। तो हमें मतलब टाइप देखकर हमें उस डायग्राम को मॉडिफाई करना है। बाकी हम फंक्शंस लिख सकते हैं। ड्राइव चेन अगर आपको याद आ रही है तो लिखो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट दैट ड्राइव चेन। जस्ट आप लिखो कि पावर जो है हम इंजन में फ्रंट एक्सल में है तो फ्रंट एक्सल में इंजन जो है हमारा तो वहाँ पर पावर प्रोड्यूस हो रही है। अगर रेयर व्हील्स हैं हमारी पावर रेयर व्हील्स पे जा रही है, हमें प्रोपेलर शाफ्ट को यूज़ करना है, ठीक है। हमें डिज़ाइन बता देना है कि कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल है, ठीक है। तो बस अब हम अपनी हर चीज़ को बहुत सिंपल समझना है तो हम बहुत इजीली अपनी थिंग्स लिख पाएंगे। अब आप देख सकते हो अब तक हम थर्ड पार्ट पे आए हैं, सब में कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब सिमिलर हैं।
तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आप अपने मन से कर सकते हो. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट पे अटेंशन. ओके, सो एडवांटेजेस हमने पढ़ लिया एट लास्ट. नाउ लेट अस सी अबाउट डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा. तो फ्रंट व्हील डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट सपोर्ट्स द इंजन डिफरेंशियल एंड स्टीयरिंग मैकेनिज्म. अब इसमें हमारा फ्रंट जो इंजन है, मतलब फ्रंट इंजन, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, देन हमारा डिफरेंशियल, सब कुछ फ्रंट में प्रेजेंट है. इसका वजह से हमारा जो फ्रंट का पार्ट है हमारे व्हीकल का वो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगा. देन हाई नॉइज ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन कंपार्टमेंट. अगेन ये भी सिमिलर पॉइंट है क्योंकि हमारा इंजन फ्रंट में प्रेजेंट है, ड्राइवर केबिन में हमारे इंजन की नॉइस ज्यादा होगी. देन पुअर एबिलिटी ऑफ व्हीकल टू क्लाइंब अ स्टीप हिल बिकॉज ऑफ लोअर वेट ऑन द रेयर व्हील. अब हम स्टीप हिल में कब चढ़ पाते थे, जब हमारी व्हीकल कौन सी होगी, कौन से टाइप की, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव. ठीक है, अब इसमें फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसका मतलब पीछे साइड पे वेट नहीं है. इसका मतलब हम जो स्टीप हिल है उसमें हमें क्लाइंब करने में प्रॉब्लम आएगी. सो दिस वेयर ऑल डिसएडवांटेजेस. लास्ट टाइप देखते हैं. हमारा लास्ट टाइप है 4 और ऑल व्हील ड्राइव. मतलब ये सबका मतलब हम कह सकते हैं सुपर कार ऐसी हो जाएगी क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें सारे व्हील्स में पावर ट्रांसमिट होगी. तो आप देख सकते हो हमारा इंजन कहाँ प्रेजेंट है, फ्रंट में प्रेजेंट है. रिमेंबर हमारे ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो हमारा इंजन है वो फ्रंट में प्रेजेंट है. देन आप देख सकते हो ये एक्सल है, ठीक है, ये फ्रंट एक्सल है, ये रेयर एक्सल है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे व्हील्स हैं. देन आप यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेजेंट है एंड यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेजेंट है, यानी कि 2 डिफरेंशियल यूज होंगे क्योंकि हमें चारों भी व्हील्स पे हमारी पावर ट्रांसमिट करानी है. ठीक है, एंड यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट यूज हो रहा है एक्स्ट्रा, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा था, वो है ट्रांसफर केस. ठीक है, ट्रांसफर केस का यूज होगा इसके अंदर. उसका क्या यूज है मैं आपको अगर सिंपल में बताऊं तो इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू बोथ द एक्सेल्स. ठीक है, रेयर एक्सल और फ्रंट एक्सल दोनों एक्सल में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इस ट्रांसफर केस का होता है. तो आई होप ये भी डायग्राम आपको बहुत सिंपल लगा होगा. सिंपल आपको इसमें क्या कंसीडर करना है, 4 व्हील्स, इंजन, देन उसके बाद 2 डिफरेंशियल एंड एक्सल्स, और मेन कंपोनेंट है यहाँ पर ट्रांसफर केस. और हाँ, ये ड्राइव शाफ्ट भी प्रेजेंट है, दैट इज योर प्रोपेलर शाफ्ट. ठीक है, दिस वाज द डायग्राम फॉर इट. कैसे लिख सकते हैं हम उसके फंक्शंस, देखो. समटाइम्स व्हाइल ड्राइविंग ऑन रूरल और अनइवन रफ अनकंस्ट्रक्टेड रोड, ऑटोमोबाइल with conventional layout, that is 2-wheel drive, gets stuck to pothole and it becomes difficult for driver to get the automobile out of the pothole or ditch. अब यहाँ पर आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि आप एक मड के अंदर, ठीक है, कीचड़ आप कंसिडर कर सकते हो, मड है, उसके अंदर आपकी व्हीकल जो है वो अटक गई है. पॉट होल मतलब कोई भी मतलब ऐसा हर्डल है जहाँ पर आपकी व्हीकल का कोई भी एक व्हील जो है वो अटक गया है. तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आपकी 4 व्हील ड्राइव है ना, तो आप इजीली अपनी पावर शिफ्ट कर सकते हो अनदर व्हील को और उस व्हील से आप मतलब निकाल सकते हो अपनी कार. ठीक है, अपने उस पॉट होल से. और लेकिन अगर आपके पास 4 व्हील ड्राइव नहीं है और आप अगर 2WD हम बोलते हैं 2 व्हील ड्राइव को, और 4WD 4 व्हील ड्राइव को, तो अगर आपकी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी पावर या तो रेयर व्हील में होगी या तो फ्रंट व्हील में होगी. तो इट विल बी डिफिकल्ट कि अगर आपका जो पावर ट्रांसमिट जिस व्हील को हो रहा है उसी वही व्हील आपका मतलब मड में अटक गया हो, तो दैट टाइम ये जो 4 व्हील ड्राइव है ना ये यूज होती है. और ज्यादातर रूरल एरियाज में अनइवन जब हमारे रोड्स होते हैं ना तो वहां पर ये ज्यादा यूजफुल होती है. द केस इज मोर सीवियर इफ द ड्राइव व्हील इटसेल्फ गेट्स स्टक इन सच अ केस. ठीक है, मैंने आपको बताया. देन हेंस टू प्रोवाइड बेटर मैन्यूवरेबिलिटी, दैट इज ड्राइव एंड ट्रैक्शन ऑन ऑल द व्हील ड्राइव्स ऑफ अ व्हीकल, अ 4 व्हील ड्राइव ट्रेन इज यूज्ड. यानी कि अगर हमें चारों भी व्हील्स पे अपना इक्वल ट्रांसमिशन रखना है, पावर का इक्वल ट्रांसमिशन, दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, ये 4 व्हील ड्राइव हमारे लिए मतलब एडवांटेजियस होगी. द ड्राइव chain for this layout is a vehicle with 4-wheel drive is denoted as 4WD or all-wheel drive. Then an additional lever is provided in the driver cabin to engage or disengage the thing. अगर आपका कोई भी व्हील अगर सपोज अटक गया है तो आपके पास एक स्पेशल जो लीवर है, एडिशनल लीवर जो है आपके ड्राइवर केबिन में प्रेजेंट होगा, जिससे कि आप अपना इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हो अनदर व्हील को. ओके, सो दिस वेयर द फंक्शन ऑफ 4 व्हील ड्राइव. एडवांटेजेस में आप क्या लिख सकते हो, better traction on all the 4 wheels. ठीक है, ideal for rural or uneven roads, we can ensure all the wheels contribute the movement. Then excellent road handling characteristics, that means improved stability है,
वी कैन कीप कंट्रोल ड्यू टू पावर ऑन द ऑल व्हील्स, यानी कि सारे व्हील्स में पावर ट्रांसमिट हो रही है तो हमारा हर व्हील के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। देन व्हीकल कैन बी यूज्ड ऑन अनइवन और रफ और अनकंस्ट्रक्टेड रोड, ठीक है। ये किसके लिए, मतलब हम 2 व्हील ड्राइव अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है 4 व्हील ड्राइव। डिसएडवांटेजेस में हम क्या देख सकते हैं, व्हीकल वेट इज हाई, ऑफ कोर्स मतलब डिफरेंशियल भी दोनों साइड में प्रेजेंट है, एडिशनल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जिसके वजह से हमारी जो व्हीकल है वो ज़्यादा हैवी हो रही है। व्हीकल कॉस्ट इज हायर, ऑफ कोर्स अगर इसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा है तो व्हीकल का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एक्सेसिबिलिटी टू वेरियस कंपोनेंट्स इज डिफिकल्ट ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, यानी कि अगर हमारा कोई भी, अगर सपोज कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो रहा है तो उसको एक्सेस करना यानी तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट बनता है क्योंकि हमारा जो व्हीकल का डिज़ाइन है दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। देन इट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रांसफर केस, मैंने बताया आपको ट्रांसफर केस इज द इम्पॉर्टेंट वन, तो इट एड्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो आई होप कि चैसिस लेआउट जितना भी है आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। 4 टाइप्स थे इसके अंदर। फर्स्ट था हमारा फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, देन रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव एंड लास्ट हमारा क्या था, ऑल व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव। तो ये क्या है, चैसिस लेआउट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे यूनिट का। अब हम आ जाते हैं हमारे स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम भी बहुत इजी है आपके लिए समझने। अभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, मतलब ऐसे भी आता है ये क्वेश्चन, ये एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी इसका नाम है। सिंपली हम इसको स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा आ गया एक्सप्लेन एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, सो इट इज़ नथिंग डिफरेंट, आपको यही एक्सप्लेन करना है। एंड ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एक बार तो ड्रॉ करो एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करना है। तो पहले तो आपको क्या बनाना है, आप देखो यहाँ से हम जाएंगे, ये व्हील्स प्रेजेंट है, ठीक है। व्हील्स आपके प्रेजेंट हैं दोनों भी साइड में। अब हम स्टीयरिंग मैकेनिज्म देख रहे हैं तो हम फ्रंट व्हील्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमारे व्हील्स हो गए, उसके बाद जो है मेन कंपोनेंट वो है ये एक्सल बीम, ठीक है। एक्सल बीम आपको समझ गई। इन सब का काम क्या है, देखो अभी मैं एक्सल बीम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको उसका वर्किंग भी बता देती हूँ साइड बाय साइड। जो हमारा व्हीकल चैसिस है वो इस एक्सल बीम के साथ ही सपोर्ट होता है। ये एक्सल बीम क्या करती है, हमारे चैसिस को और मतलब व्हीकल के स्ट्रक्चर को हमारे स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ सपोर्ट रखने का काम करती है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा एक्सल बीम, ठीक है। एक्सल बीम इट टेक्स द वेट ऑफ स्टब एक्सल, यानी कि स्टब एक्सल क्या है, अब ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये स्टब एक्सल है। तो ये स्टब एक्सल का जो भी वेट है ये हमारे एक्सल बीम जो है वो रखती है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इन स्टब एक्सल का काम क्या होगा, स्टब एक्सल्स आर पाइवोटेड, देखो आप देख सकते हो कि वो दोनों कैसे हैं, पाइवोटेड हैं एट द 2 एंड्स ऑफ द एक्सल बीम। हमारे एक्सल बीम के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों भी एंड्स में ये स्टब एक्सल प्रेजेंट है। और ये किसके साथ पाइवोटेड है, किंग पिन्स के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है किंग पिन्स, तो ये किंग पिन्स से जो है ये मतलब पाइवोटेड होते हैं। देन वन एंड ऑफ स्टब एक्सल कैरीज व्हील्स, लाइक आप देख सकते हो। अब हम अगर डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ पर एडजस्टर दिख रहा है, देन हमें यहाँ पर ये टाई रॉड दिख रही है। अभी ये टाई रॉड कौन सी है, ये पूरी ये टाई रॉड है, ठीक है, जिसके साथ हमारा पूरे कंपोनेंट्स लाइक एडजस्टर, फिर यहाँ पर ये है रैक पिनियन, ये सब जिसके साथ कनेक्टेड है वो हमारी टाई रॉड है। इसको हम ट्रैक रॉड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है। अब हमारा जो लेफ्ट साइड है, ये स्टब एक्सल का ये वाला जो लेफ्ट साइड है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, तो हमारे एडजस्टर के साथ कनेक्टेड है। इस एडजस्टर का काम क्या होगा, ये जो हमारी टाई रॉड है ना, इस टाई रॉड का जो भी मतलब साइज है वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेंथ ऑफ द रॉड हमें एडजस्ट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो ये एडजस्ट करने का काम हमारा एडजस्टर करता है, ठीक है। टाई रॉड का काम क्या होता है, देखो ये दोनों भी स्टब एक्सल के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये विद द हेल्प ऑफ एडजस्टर लेंथ ऑफ द रॉड इज एडजस्टेड। और टाई रॉड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म, क्योंकि ये हमारा जो हमारी लेंथ है उसको वी कैन से दैट इट इज मेंटेनिंग इट। फिर हमारे पास है ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैक एंड पिनियन का मतलब क्या है, देखो हम जब व्हील्स को टर्न करते हैं तब ये जो स्टब एक्सल्स के ऊपर जो है ना हमारा सारा वेट जाता है। सो दे नीड टू बी ऑसिलेटेड अबाउट द किंग पिन, हमारी जो किंग पिन है उसके अराउंड ऑसिलेट होना चाहिए हमारे क्या stub axle. So this oscillatory motion of stub axle this can be achieved by giving linear motion, ठीक है। हमें linear motion देना पड़ेगा तभी जाके हमारी oscillation motion जो है ना stub axle का
किंग पिन के अराउंड वो कवर हो पाएगा। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टाई रॉड। और ये रैक जो है टाई रॉड के ऊपर माउंट होती है एंड ये क्या करती है, इंगेज हो जाती है पिनियन के साथ। ठीक है, आप देख सकते हो रैक कैसे पिनियन के साथ इंगेज है। एंड यही हमारे स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर, ये जो स्टीयरिंग कॉलम है ना, इसके ऊपर मतलब माउंट होती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रैक एंड पिनियन। और ये है स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम किसके साथ कनेक्टेड है? अब स्टीयरिंग कॉलम क्या करता है, हमारा स्टीयरिंग कॉलम रोटेट होता है। द पिनियन माउंटेड ऑन द स्टीयरिंग कॉलम ऑल्सो रोटेट्स। ठीक है, जब हमारा स्टीयरिंग कॉलम रोटेट होगा तो हमारा पिनियन रोटेट होगा, और जब ये पिनियन रोटेट होगा तो उसके साथ क्या इंगेज है, हमारा रैक इंगेज है। तो पिनियन और रैक दोनों भी मूव होंगे, और जब ये दोनों मूव होंगे तो टाई रॉड मूव होगी, टाई रॉड से स्टब एक्सल जो है वो ऑसिलेट होगा और हमारे व्हील के पास वो पावर जाएगी रोटेट होने की। ठीक है, तो दिस इज डन बाय स्टीयरिंग कॉलम। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसका तो हम सबको मतलब वर्किंग पता है। स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, ड्राइवर रोटेट करता है स्टीयरिंग व्हील को। तो ड्राइवर क्यों रोटेट करता है स्टीयरिंग व्हील को? अब हम डायरेक्टली अगर स्टीयरिंग कॉलम को रोटेट करेंगे, इमेजिन कि हमारे पास स्टीयरिंग व्हील नहीं है, हमारे पास स्टीयरिंग कॉलम है, सो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा एंड कितना मतलब डेंजरस स्ट्रक्चर होगा लाइक। तो हम उसको रोटेट करना ज़्यादा इजी है या फिर हम स्टीयरिंग व्हील को करें तो वो ज़्यादा इजी है? तो स्टीयरिंग व्हील क्यों प्रोवाइड होता है कि हम ड्राइवर जो है वो ईजीली रोटेट कर पाए एंड वो पावर हम स्टीयरिंग कॉलम को दें फॉर रोटेशन और वही कैरी फॉरवर्ड हो। सो आई थिंक आपको समझा होगा कि ये स्टीयरिंग सिस्टम कैसे वर्क होता है। ठीक है, सिंपल आपको मतलब 4-5 चीज़ें हैं जो टर्म्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं। एक तो एक्सल बीम याद रखनी है। ऊपर से चलिए, आप अपना डायग्राम आप ऊपर से ही बनाएंगे, राइट? तो एक्सल बीम आपको सबसे पहले बनानी है, देन व्हील्स के साथ स्टब एक्सल, एंड एक्सल बीम के ऊपर हमारी स्टब एक्सल माउंटेड है। ठीक है, वो कैसे पाइवोटेड है, किंग पिन्स के साथ, और ये कैसी है, मूवेबल है। ठीक है, ऑसिलेशन आप रिमेंबर करें तो ऑसिलेटरी मोशन में इनको मूव होना है अराउंड द किंग पिन। फिर फर्स्ट साइड जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे स्टब एक्सल की एडजस्टर के साथ, और सेकंड साइड किसके साथ कनेक्टेड है, रैक पिनियन के साथ। अब हम टाई रॉड भी प्रेजेंट है, टाई रॉड को लेंथ मतलब टाई रॉड की जो लेंथ है वो हमें एडजस्ट करने के लिए एडजस्टर प्रेजेंट होता है। रैक पिनियन मैकेनिज्म, ये डिसएंगेज और इंगेज होते रहते हैं, तो ये इंगेज होंगे तो ये हमारे साथ स्टीयरिंग कॉलम के हिसाब से रोटेट होते रहेंगे। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम किसके साथ कनेक्टेड है, स्टीयरिंग व्हील के साथ। तो मतलब जैसा रोटेशन हमारा ड्राइवर देगा हमारे स्टीयरिंग व्हील को, वही कैरी फॉरवर्ड होगा अलोंग द व्हील्स। तो ये क्या है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। जब हम वर्किंग समझेंगे तो हम नीचे से जाएंगे, राइट? स्टीयरिंग व्हील से ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया आपको सिंपली कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्टीयरिंग सिस्टम कैसे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि स्टीयरिंग सिस्टम आप कैसे मतलब कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्टब एक्सल है। ठीक है, ये स्टब एक्सल प्रेजेंट है, एंड देन इसके बाद आप ये एक्सल बीम देख सकते हो। ठीक है, ये एक्सल बीम है, ये पूरा ये स्टीयरिंग कॉलम है। ठीक है, ऐसे जो है हमारा पूरा मतलब सिस्टम होता है स्टीयरिंग सिस्टम। यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिख दिए हैं, वही जो मैंने आपको बताया है ना, अब वही अपने वर्ड्स में लिखे हैं। देखिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, हमें स्टीयरिंग सिस्टम क्यों यूज़ होता है, जनरल नॉलेज, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। टू प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी टू द व्हीकल व्हेन मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ, अगर हम स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहे हैं तो हमारी जो ड्राइव है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी इंश्योर करना स्टीयरिंग सिस्टम का काम है। टू फैसिलिटेट स्ट्रेट मोशन रिकवरी आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्न, यानी कि हम अगर कंप्लीट टर्न ले रहे हैं, सपोज हम अपना यू टर्न ले रहे हैं, तो उस केस में हमारा यू टर्न जैसे ही कंप्लीट हो हमें मतलब स्ट्रेट मोशन होना चाहिए जो कि न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए। तो वो भी हमारा स्टीयरिंग सिस्टम करता है। देन टू अचीव परफेक्ट रोलिंग मोशन ऑफ व्हील्स ऑन रोड, कंप्लीट रोटेशन भी हमारा स्टीयरिंग सिस्टम हैंडल करता है। देन टू मिनिमाइज टायर वियर एंड टियर। सो ये हो गए फंक्शंस हमारे स्टीयरिंग सिस्टम के। ठीक है, और सस्पेंशन सिस्टम, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर, दैट इज सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर डेफिनेशन बताऊं सस्पेंशन सिस्टम की, तो दिस इज माउंटेड बिटवीन ऑटोमोबाइल चैसिस एंड द एक्सल्स। एक्सल्स कौन से, हमारे फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल, टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम द रोड शॉक्स। अब हमें जब भी हमारे स्पीड ब्रेकर आता है या मतलब कोई भी ऐसा हर्डल आता है, तो हमें जितना ज़्यादा बड़ा हर्डल है उतनी हमें मतलब
शॉक नहीं आना चाहिए, पैसेंजर्स को उतना शॉक नहीं आना चाहिए, तो वो शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट होना चाहिए। सो दैट इज नथिंग बट आर सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, अब उसके फंक्शंस क्या हैं? अगेन फर्स्ट फंक्शन तो बहुत ईजी है कि दिस इज यूज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम द रोड शॉक्स, देन टू सेफ गार्ड द पैसेंजर्स एंड कार्गो फ्रॉम द रोड शॉक्स। अब व्हीकल बॉडी को तो हम शॉक से बचा रहे हैं, लेकिन कार्गो यानी कि गुड्स अगर जा रहा है, सपोज अगर मिरर की चीज़ें जा रही हैं, तो हमें सस्पेंशन सिस्टम जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इतने ज़्यादा शॉक्स नहीं हो। देन टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर्स एंड रोड, टायर और रोड के बीच में जो है वो कॉन्टैक्ट भी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब ज़्यादा ही स्पीड ब्रेकर आ गया और हमारी कार मतलब बहुत ही मतलब ऐसा उसने मूव ले लिया, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग जो कि व्हीकल के साथ होनी चाहिए। तो वो कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का काम भी सस्पेंशन सिस्टम करता है। टू मेंटेन द लेवल ऑफ व्हीकल बॉडी वाइल ट्रैवलिंग ऑन रफ और इंक्लाइंड रोड, तो लेवल भी जो है हमें हमारी व्हीकल का मेंटेन करके रखना है, दैट इज अगेन डन विद द सस्पेंशन सिस्टम। फिर टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, अब हमारे पास दो टाइप्स हैं सस्पेंशन सिस्टम के, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम। तो मेजरली आपको ऐसा नहीं आएगा कि आप मतलब सस्पेंशन सिस्टम को मतलब एक्सप्लेन करो, आपको कोई भी इसमें से टाइप्स बताया जाएगा। अब इसमें से कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दोनों समझने के बाद ही बताऊंगी कि इसमें से कौन सा टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सस्पेंशन सिस्टम के टाइप में से क्वेश्चन आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्या डायग्राम, वही चीज़ डायग्राम कंसिडर करना है, फंक्शंस कंसिडर करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम क्या है? लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है। देखो आप देख सकते हो, ये है डायग्राम। यही डायग्राम अगर क्वेश्चन फॉर लीफ स्प्रिंग आया तो आपको यही डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, आप देख सकते हो पहला क्या है, पहला हमारे पास चैसिस फ्रेम है। ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा चैसिस फ्रेम प्रेजेंट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये पूरे हमारे पाइवोट, एक साइड को हमारी स्प्रिंग आई जो है वो पाइवोटेड है, जो कि शैकल के साथ पाइवोटेड है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये यू बोल्ट है। ठीक है, यू बोल्ट। और फिर ये ऊपर वाली जो लीफ है, इन सबको हम लीफ बोलेंगे। ठीक है, लीफ, ये जो भी हमारी 1 2 3 4 5 जितनी भी हमें ऐसे नीचे को डाउनवर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो उन्हें हम लीव्स बोलेंगे। जो सबसे ऊपर वाली लीव है वो हमारी मेन लीव होती है। ठीक है, उसको हम मेन लीफ बोलते हैं। और जो नीचे जो छोटी छोटी होती जा रही है ना, उनको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड लीव्स। ठीक है, और फिर ये है रीबाउंड क्लिप। ठीक है, ये सब रीबाउंड क्लिप्स हैं जो कि सारे हमारे जो लीव्स हैं ना उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, लीफ स्प्रिंग का। अगर मैं आपको एक एक करके मैं कंपोनेंट्स की वर्किंग बताऊं, तो सबसे पहले हमारी जो है हमारे मेन लीफ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। मेन लीफ का क्या है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज द लॉन्गेस्ट लीफ ऑफ द लीफ स्प्रिंग। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लीफ स्प्रिंग बोलेंगे, और जो ये सिर्फ ऊपर वाला स्प्रिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, मेन स्प्रिंग। सो मेन लीफ, तो द लॉन्गेस्ट लीफ ऑफ द लीफ स्प्रिंग इज कॉल्ड द मेन लीफ, और इसको हम मास्टर लीफ भी बोलते हैं। थ्रू द आईज ऑफ मास्टर लीफ द लीफ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द चैसिस एंड शैकल। तो ये जो आईज है, मतलब ये स्प्रिंग आई जो बोला है, स्प्रिंग आईज की मतलब उसके साथ कनेक्ट होके हमारी जो मेन लीफ है वो किससे कनेक्टेड है, शैकल और मतलब चैसिस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया मेन या मास्टर लीफ के बारे में। उसके बाद हमें बोलना होता है ग्रेजुएटेड लीव्स। ग्रेजुएटेड लीव्स देख सकते हो आप, ये लीव्स किस में है, रिड्यूसिंग लेंथ है। ठीक है, फुल लेंथ से कम कम होती जा रही है लेंथ। सो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि द लीव्स ऑफ रिड्यूसिंग लेंथ प्लेस्ड आफ्टर द फुल लेंथ, ये होती हैं ग्रेजुएटेड लीव्स। फिर हमें यू बोल्ट देखना है। ठीक है, ये यू बोल्ट आपको दिख रहा है, तो ये यू बोल्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, द लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड ऑन द एक्सल, यानी कि फ्रंट एक्सल या रेयर एक्सल बाय यू बोल्ट्स। तो हमारी जो ये लीफ स्प्रिंग है, चाहे वो फ्रंट एक्सल में हो या रेयर एक्सल में हो, किसके साथ सपोर्ट में होती है, तो यू बोल्ट्स के साथ सपोर्ट में होती है। इन एडिशन द लीव्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ द यू बोल्ट्स। ठीक है, यानी कि ये जो लीव्स को हम साथ में रख रहे हैं ना, मेन लीव से जो भी ग्रेजुएटेड लीव्स हैं, इनको साथ में रखने का मेन कंपोनेंट है यू बोल्ट्स। उसके बाद है हमारे पास रीबाउंड क्लिप्स। ये रीबाउंड क्लिप्स आप देख सकते हो, ये तो ये रीबाउंड क्लिप्स के बारे में आप लिख सकते हो कि दीज आर लोकेटेड एट इंटरमीडिएट पोजिशंस अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग टू दैट सो दैट द ग्रेजुएटेड लीव्स शेयर द रीबाउंड लोड विद द मेन और द मास्टर लीफ। यानी कि जो भी ग्रेजुएटेड लीफ है ये अपना जो भी इनका लोड है वो मेन एक्सल के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकें। सो ये इनका काम है। ओके, सो ये रीबाउंड
क्लिप के बारे में बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो शैकल है, देखो ये देख सकते हो आप, ये शैकल। इस शैकल का क्या मतलब इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वन एंड ऑफ द लीफ स्प्रिंग is directly mounted on the chassis while the other end is connected to the chassis through shackle. The shackle provides flexibility for the movement of end of the leaf spring. When vehicle is subjected to the road shock, the wheel and the axle move forward like upward. The shackle provides flexibility for movement of end of the leaf spring. When vehicle is subjected to road shock, the wheel and axle move upward, deflecting the spring. The spring absorbs the shock. Due to deflection of spring, the length of the spring increases and the increase in length of spring is accommodated due to angular movement of shackle about the pivot. I hope आपको समझा होगा कि ये पाइवोट और शैकल का जो अरेंजमेंट है, कोई भी अगर हर्डल आ रहा है तो वो कैसे मूव होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द शैकल। यही एप्लीकेशन आप लिख सकते हो कि लीफ स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन हेवी मोटर व्हीकल्स। इंपॉर्टेंट वन कि जो हमारा ये फर्स्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है लीफ स्प्रिंग, ये किस में यूज होता है, तो किसमें यूज होता है, तो ये हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये सिंपल लेआउट है किसका, लीफ स्प्रिंग का। देन देख सकते हो आप, ये ऐसा आपने ये स्ट्रक्चर देखा भी होगा, मेनली ये मतलब व्हीकल्स में दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे लीफ स्प्रिंग का, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे ग्रेजुएटेड लीव्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये शैकल पाइवोट भी देख सकते हो। अब सेकंड टाइप है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम, दैट इज कॉइल स्प्रिंग एंड डैम्पर। अब इस पे आपको ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि ये ही जो है मेन टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है। इसी के आने के चांसेस आई विड से कि 90% इसी के चांसेस होते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम के। सो इसका मतलब डायग्राम आप इजी वे में लेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। अदरवाइज आपको अगर देख के डर लग रहा है ना, तो डोंट फील लाइक दैट, इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट आपको स्टार्टिंग टू द एंड, मैं आपको हमेशा बता रही हूँ कि आप ऊपर से नीचे तक आप डायग्राम बनाएं, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर ऑल्सो। तो पहले आप क्या करोगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, ये है दैट इज आई टू कनेक्ट द एक्सल, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। तो पहले तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम जो है ये मतलब टू व्हीलर्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, जो लाइट वेट व्हीकल्स हैं। अभी हमने लीफ स्प्रिंग के बारे में बात की, वो हैवी व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है। तो ये जो है लाइट व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है। अब ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम सबने देखा होगा, बाइक के अंदर हम देखते हैं जो स्प्रिंग प्रेजेंट होता है ना, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जो भी आप कंसिडर करो। तो वो क्या है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम है, जो कि हमारे शॉक्स एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो जो उसके ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर का, दैट इज आई टू कॉन्टैक्ट एक्सल। दिस इज लाइक एंकल जॉइंट। अगर आप कंसिडर करें ह्यूमन बॉडी, तो एंकल जॉइंट जो होता है ना, आप अगर वो कंसिडर करें तो वो वैसा है उसका, कनेक्टिंग द सस्पेंशन टू द एक्सल। अगर हम कार के बारे में बात करें तो कार्स के जो एक्सल है तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए जो है ये आई टू कनेक्ट एक्सल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे जो बॉटम में प्रेजेंट है, आई टू कनेक्ट चैसिस फ्रेम, यानी कि ये नीचे का पार्ट है। तो पिक्चर इट एज योर नी जॉइंट, ठीक है, लिंकिंग द सस्पेंशन टू द कार्स चैसिस फ्रेम, ठीक है। वो ऊपर से कनेक्ट हो रहा है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट नीचे से कनेक्ट हो रहा है। तो हम इनको आई टू कनेक्ट एक्सल और आई टू कनेक्ट चैसिस फ्रेम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास ये रॉड प्रेजेंट है, ये रॉड देख सकते हो आप, ये रॉड, ठीक है। इस रॉड का काम क्या है, लाइक थिंक अगेन, मैं आपको एक बॉडी का ही मतलब स्ट्रक्चर बता रही हूँ जिसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो अब आप इसको एक लेग बोन की तरह कंसिडर करो, ठीक है। तो ये रॉड क्या है, एक लेग बोन की तरह है, और ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे सस्पेंशन सिस्टम को। उसके बाद है हमारे पास पिस्टन ग्लैंड, देख सकते हो आप, ये ग्लैंड जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट में मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ, ये वाला जो ग्लैंड है ना, ठीक है, ये ग्लैंड का काम क्या है। अब इसको भी अगेन आई विल टेल यू टू इमेजिन लाइक योर थाई मसल, ठीक है। ये थाई मसल का काम क्या है, हेल्पिंग कंट्रोल द सस्पेंशन मूवमेंट, ठीक है। ये कंट्रोल करता है मतलब हमारे सस्पेंशन सिस्टम को। उसके बाद है हमारे पास हेड सिलेंडर ट्यूब, ट्यूब दिख रहा है आपको, ये और ये पूरा जो है ये सिलेंडर, हेड सिलेंडर ट्यूब जो मतलब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, हमारे ये एनक्लोज करता है सस्पेंशन कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो इसका काम बस एनक्लोज करना है। देन आप ये वॉल्व देख रहे हो, ये वॉल्व 1, वॉल्व 2, ठीक है। ये क्या है, दीज आर लाइक मतलब फ्लो ऑफ मूवमेंट रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो हमारे वेन्स के अंदर कॉमन होता है, राइट। तो इट इज सिमिलर टू दैट ओनली कि दीज आर लाइक वॉल्व्स रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये फ्लूइड प्रेजेंट है, राइट। तो ये फ्लूइड का काम क्या है,
इट इज़ यूज्ड फॉर सर्कुलेटिंग थ्रू द सिस्टम अलाउइंग स्मूथ मोशन। इसी के वजह से जो है हमारे शॉक्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अब इसको आप मेजरली क्या कंसिडर करोगे, अगर हम एक बॉडी को ही कंसिडर कर रहे हैं तो दिस इज योर ब्लड, राइट। तो ठीक है, आप आई थिंक कि आपको समझा होगा कि आपको कैसे ध्यान में रखना है पूरा डायग्राम। जस्ट आपको आई टू कॉन्टैक्ट एक्सल, आई टू कनेक्ट चैसिस फ्रेम, ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये रॉड याद रखनी है जिसके साथ हमारी वॉल्व 1 और वॉल्व 2 कनेक्टेड है। देन हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर और पिस्टन और ट्यूब का जो है वो कनेक्शन है, एंड यहाँ पर ये हेड रॉड कनेक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझा होगा कि आपको पूरा डायग्राम कैसे फ्रेम करना है। एक बार आप ड्रॉ कर लोगे, इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ठीक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम हो गया। अब भी हम आगे का पार्ट हमारा है ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम ब्रेक ड्रम देखेंगे, अगेन टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम देखेंगे। तो हमें पता है ब्रेकिंग सिस्टम का काम क्या होता है। अगर सपोज हम सिंपल एक हैंड ब्रेक का एग्जांपल लें, हमारी बाइसिकल के अंदर जो होता है, तो उसको अगर हम ब्रेक करें हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर बहुत कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा व्हील जो है वो ब्रेकिंग पोजीशन पे आता है। सो व्हाट ऑल द थिंग्स आर देयर एंड डिफरेंट ब्रेकिंग सिस्टम्स हम इसके अंदर देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट है ड्रम ब्रेक्स, और वी ऑल्सो कॉल इट एज इंटरनली एक्सपांडिंग ब्रेक। तो जैसे ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, वैसे ही ड्रम ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर। एक और पार्ट है अगेन दैट इज वेरी सिमिलर, कि उसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। तो जस्ट आप ये वाला ज़्यादा कंसिडर करते हैं एग्जामिनर्स, बिकॉज इसका डायग्राम थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू दैट डिफरेंट सेकेंड वन। तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको सेकेंड वाला नहीं समझा होगा तो। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू, आपको समझने की मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ड्रम ब्रेक्स एंड इंटरनली एक्सपांडिंग ब्रेक, ये इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल को क्या बोलेंगे हम, ड्रम ब्रेक ड्रम। ठीक है, ये बोलेंगे। पिक्चर इट एज द सर्कुलर सरफेस अराउंड योर बाइक व्हील वेयर द ब्रेक ऑपरेट्स। ठीक है, हम साइकिल अगर हम कंसिडर करते हैं, चलो हम साइकिल कंसिडर करके ही इसको समझेंगे आज। तो ब्रेक ड्रम को हम कैसे समझेंगे, जो भी सर्कुलर सरफेस होता है ना हमारे बाइक व्हील के अराउंड, तो वो कुछ नहीं है, बस ब्रेक ड्रम है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक शू, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेक शू, मैंने जिनको ये किया है, ये ब्रेक शू होते हैं। तो ये ब्रेक शू का क्या काम है, थिंक ऑफ दीज एज द ब्रेक पैड्स इन योर बाइसिकल। ठीक है, थिंक ऑफ दीज एज द ब्रेक पैड्स इन योर बाइसिकल, बट इन दिस केस दे आर कर्व्ड। ठीक है, आपको समझना है, इस केस में ये कर्व्ड है एंड दे आर प्रेस अगेंस्ट द ड्रम। ठीक है, आपने देखे होंगे जो ब्रेक पैड्स होते हैं हमारी बाइसिकल के अंदर, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो हील ऑफ द शू, ये हील ऑफ द शू है। ठीक है, हील ऑफ द शू, इसका काम क्या है, आप इसको कैसे इमेजिन करोगे, बैक एंड ऑफ द ब्रेक शू, जो बैक साइड होती है हमारे ब्रेक शू की। ठीक है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट विद द ड्रम। अब ड्रम के साथ हमें जो है हमारे शू का कॉन्टैक्ट रखना है, तो दैट इज डन बाय दिस हील ऑफ द शू। उसके बाद हम देखेंगे तो बैक प्लेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बैक प्लेट आपको दिख रही है, ये तो ये ही मैंने यहाँ पर देखो मेंशन किया है। सो दिस इज योर बैक प्लेट, इमेजिन इट एज द रिजिड बैकिंग होल्डिंग एवरीथिंग इन द प्लेस। तो हर चीज़ को इसकी प्लेस पे होल्ड करने की जो फंक्शन है वो बैक प्लेट का है। उसके बाद आप देख सकते हो एंकर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंकर देखो आपको दिख रहा है, एंकर का क्या फंक्शन है, पिक्चर इट एज योर फिक्स्ड पॉइंट वेयर द ब्रेक सिस्टम इज अटैच्ड, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मूवमेंट। एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करना एंड ब्रेक सिस्टम को अटैच रखना एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ, वो एंकर का काम है। देन देखो ये एडजस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, एडजस्टर, थिंक ऑफ इट एज द एडजस्टर स्क्रू अलाउइंग फाइन ट्यूनिंग ऑफ द ब्रेक शू पोजीशन। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा है, एक एक कंपोनेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, आप किसको लें, एक्सपांडर देखते हैं। तो ये एक्सपांडर का काम क्या है, देखो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन करा है। एक्सपांडर ये इसको हम क्या बुला सकते हैं, व्हील सिलेंडर भी बुला सकते हैं। तो दिस इज लाइक द हैंड स्क्वीजिंग द ब्रेक लीवर। ठीक है, कॉजिंग द ब्रेक शूज टू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम देखेंगे तो रिट्रैक्टर स्प्रिंग प्रेजेंट है। रिट्रैक्टर स्प्रिंग, ये वाला रिट्रैक्टर स्प्रिंग, ये जो ऊपर साइड में स्प्रिंग प्रेजेंट है, इसको हम रिट्रैक्टर स्प्रिंग बोलते हैं। तो इसका क्या काम है, स्प्रिंग को बैक पुल करना। ओके, इमेजिन कि हम ब्रेक शूज से ब्रेक प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, तो हमारा स्प्रिंग जो है वो बैक को पुल होता है।
सो दैट इज डन बाय द रिट्रैक्टर स्प्रिंग। उसके बाद हमारे पास ब्रेक लाइनिंग प्रेजेंट है, जो कि एट लास्ट हम देख रहे हैं ये ब्लैक में जो है ना, ब्लैक में, तो ये ब्रेक लाइनिंग है। सो थिंक ऑफ इट एज द मटेरियल कवरिंग ब्रेक शू प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन अगेंस्ट द ड्रम। तो यही क्या हो गया, हमारे हर कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। आई होप कि आपको ड्रम ब्रेक समझा होगा। अब मैं आपको डायग्राम बनाने का बताऊं तो सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना है, ब्रेक ड्रम बनाना है एंड उसके अंदर आपको दो कर्व्स बनाने हैं जो कि हमारे ब्रेक शू हैं। उसी वक्त आपको लेबल कर देना है हील ऑफ द शू और बैक प्लेट को एंड टो ऑफ द शू भी, ठीक है। हील और टो तो हम रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों को कनेक्ट कर देना है किससे, रिट्रैक्टर स्प्रिंग के साथ। एंड देन हमें जो है वो लाइनिंग बना देनी है, ब्रेक लाइनिंग, जिसके साथ ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू कनेक्टेड है। फिर ब्रेक दोनों भी ब्रेक शू के बीच में हमारे पास दिख रहा है हमें एक्सपांडर प्रेजेंट है, ठीक है। वो एक्सपांडर बना देना है एंड देन एट द एंड लास्ट में हमें एडजस्टर और एंकर बना देना है। तो दिस इज नथिंग बट द सिंपल डायग्राम फॉर ड्रम ब्रेक्स, ठीक है। एडवांटेजेस हमें लिखने होंगे। सिंपल एडवांटेजेस हैं दैट इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्रिक्शन शूज प्रोवाइडिंग बेटर ब्रेकिंग देन लार्ज फ्रिक्शन शूज। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ड्रम ब्रेक्स दे हैव लाइक सब्सटेंशियल फ्रिक्शन शूज होते हैं उनके पास। दिस प्रोवाइड्स इफेक्टिव ब्रेकिंग बाय मैक्सिमाइजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया विद द ब्रेक ड्रम। हम ब्रेक ड्रम के साथ अगर कॉन्टैक्ट एरिया हमारा मैक्सिमम है ना, सो दैट टाइम दिस ब्रेकिंग फ्रिक्शन इज अलाउड। सो लार्ज फ्रिक्शन सरफेस, ये एक एडवांटेज है। देन द ओवरऑल सिस्टम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सिंपल। द ओवरऑल डिजाइन, हमें ड्रम ब्रेक का जो हमारा डिजाइन है वो सिंपल है, ऐसा बताना है। देन द ड्रम ब्रेक्स आर मोस्ट इकोनॉमिकली एट कॉस्ट। तो अगर ये चीपर है सो अगेन दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो द वियर एंड टियर ऑन ब्रेक शू इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम ब्रेक लाइनिंग को कंसिडर करें, इमेजिन विथ मी, अगर हम ब्रेक लाइनिंग कंसिडर करें तो हम कई बार जाते हैं हमारी ब्रेक लाइनिंग चेंज करवाने के लिए, राइट। तो हम मतलब वो अनइवन उसके अंदर जो है, अगर कहीं से भी लाइनिंग ज़्यादा कट हो जाती है, कहीं पे कम होती है, तो इसके वजह से ये अनइवन होता है एंड अगेन हमें उसकी लाइनिंग को पूरे को ही डिस्प्लेस कराना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो जाती है। देन ओवरऑल साइज ऑफ द सिस्टम इज बिग। तो ये ड्रम ब्रेक का जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज है। And replacement of brake shoe requires dismantling of entire brake drum and back plate assembly। यानी कि अगर ब्रेक शू में प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेक शू खराब हो गया है, तो हमें कंप्लीट ब्रेक ड्रम भी निकालना पड़ता है और बैक प्लेट भी निकालनी पड़ती है। सो अगेन दिस इज अ लिमिटेशन फॉर द ड्रम ब्रेक, ठीक है। अब सेकेंड टाइप है हमारे ब्रेक्स का, डिस्क ब्रेक्स, ठीक है। तो ये डिस्क ब्रेक्स तो सबने ही देखे होंगे। आप देख सकते हो ये जो है ना हमारी बाइक्स में जो प्रेजेंट होता है व्हील्स में, ये डिस्क ब्रेक्स होते हैं। तो ये डिस्क ब्रेक्स कैसे हमारे ब्रेकिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं, लेट अस सी। ये जो है डायग्राम आपको ये बनाना है, वो जो मैंने डायग्राम बनाया दिखाया वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये वाला डायग्राम आपको कंसिडर करना है आपके एग्जाम। इसमें आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलिपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंप्लीटली ये क्या है, हमारा कैलिपर प्रेजेंट है। उसके बाद कैलिपर क्या है, थिंक इट एज योर हैंड ग्रिपिंग द डिस्क, ठीक है, विथ स्पेस ऑफ द स्पिनिंग डिस्क इन बिटवीन, तो वो होता है कैलिपर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो रिवॉल्विंग डिस्क, ये रिवॉल्विंग डिस्क ये पूरी है, ठीक है। ये रिवॉल्विंग डिस्क का काम क्या है, आप कैसे पिक्चर कर सकते हो, इट पिक्चर इट एज अ स्पिनिंग प्लेट विच इज अटैच टू द व्हील। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो स्पिनिंग प्लेट इमेजिन करो, दैट इज योर रिवॉल्विंग डिस्क। इट इज मच लाइक स्पिनिंग रिकॉर्ड, ओके। दिस वॉज योर रिवॉल्विंग डिस्क। देन एक्चुएटिंग पिस्टन विथ फ्रिक्शन पैड, ये जो प्रेजेंट है ये वाले पार्ट्स, तो इनका काम क्या है, इमेजिन इट एज योर फिंगर्स अप्लाइंग द प्रेशर टू द डिस्क। द पिस्टन पुशेज अ फ्रिक्शन पैड अगेंस्ट द डिस्क, ओके। देन फ्लूइड लाइन्स, ये जो फ्लूइड लाइन्स प्रेजेंट है ये आप देख सकते हो, ये फ्लूइड लाइन्स। सो दीज आर लाइक, अब मैं आपको अगेन वही एग्जांपल दूंगी, ब्लड वेसल्स। तो ये फ्लूइड लाइन्स क्या है, दे कैरी हाइड्रोलिक फ्लूइड टू कंट्रोल द कैलिपर्स मूवमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क ब्रेक्स, ठीक है। आप एक बार ये डायग्राम मतलब ड्रॉ कर लो, एक बार कॉपी करके देख लो, दैट दिस विल बी इजी वन। बट इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, ड्रम ब्रेक्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बट एज इट इज़ देयर इन सिलेबस वी कैन नॉट जज एनीथिंग। तो अगर डायग्राम मैंने आपको दिया है सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
प्रैक्टिस इट, ओके, नथिंग वी कैन गेस दिस टाइम. सो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको प्रैक्टिस करना है. अगेन मैं आपको अगर वर्किंग बताऊं तो अगर हम अप्लाई करते हैं ना ब्रेक, तब क्या होता है, व्हेन यू प्रेस द ब्रेक पैडल देन हाइड्रोलिक प्रेशर इज जनरेटेड. सिंपल वर्ड्स में आप इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करिए. जैसे ही हम अपने ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है, पुशिंग द एक्चुएटिंग पिस्टन अगेंस्ट द फ्रिक्शन पैड. ये जो एक्चुएटिंग पिस्टन विथ फ्रिक्शन पैड बताया है ना मैंने, जब हमारे ब्रेक पेडल पे प्रेशर अप्लाई होगा तो हाइड्रोलिक प्रेशर क्या करेगा, जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हुआ होगा वो ये पिस्टन को फॉरवर्ड पुश करेगा फ्रिक्शन पैड की तरफ. ठीक है, अब ये फ्रिक्शन पैड किसके कांटेक्ट में है, डिस्क के कांटेक्ट में है. ठीक है, ये फ्रिक्शन पैड डिस्क के कांटेक्ट में है तो क्या होगा, द फ्रिक्शन पैड इज प्रेस्ड अगेंस्ट द स्पिनिंग डिस्क क्रिएटिंग द फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन को क्रिएट करके ये क्या करता है, स्पिनिंग डिस्क के साथ जो है कनेक्टेड रहता है और स्पिनिंग डिस्क को प्रेस करता है. देन स्लो थर्ड मतलब वर्किंग क्या होती है, स्लोइंग डाउन द रोटेशन. सो इसके वजह से हमारी जो मतलब व्हील्स की रोटेशन है वो स्लो हो जाती है. द फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड डिस्क स्लोज डाउन दिस रोटेशन ऑफ द व्हील. उसके बाद हीट डिसिपेशन होता है, यानी कि द ओपन डिजाइन दैट अलाउज द हीट टू डिसिपेट क्विकली प्रिवेंटिंग द ओवर हीटिंग. और उसके बाद क्या होता है, रिलीजिंग द ब्रेक पैडल. जैसे ही आप व्हेन यू रिलीज द ब्रेक पैडल द प्रेशर इज रिलीज्ड एंड द फ्रिक्शन पैड बैक्स अवे फ्रॉम द डिस्क. आपको इसका फंक्शनिंग तो पता ही है, सिंपली फ्रिक्शन पैड फोर्स अप्लाई करता है जिसके वजह से रिवॉल्विंग डिस्क को मतलब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो रिड्यूस कर देती है अपने रोटेशन को, और अगर हमने ज़्यादा ही जोर से ब्रेक पेडल अप्लाई किया तो वो स्टॉप भी हो जाता है हमारा व्हील. सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द डिस्क ब्रेक्स. आई थिंक ये ज़्यादा सिंपल है फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट हम डायग्राम से डर जाते हैं. सिंपल है, जस्ट आपको कंसिडर करना है रिवॉल्विंग डिस्क को, एक्चुएटिंग पिस्टन विथ फ्रिक्शन पैड एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो कैलिपर है एंड हमारे पास फ्लूइड फ्रॉम लाइन्स है. ठीक है, सो ये डायग्राम हो गया. इसके बाद ये एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस है. आई होप कि आप ये पढ़ लेंगे, सिंपल है, मैंने आपको वर्किंग बता दिया. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. देन वी हैव एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, जो कि हम ज़्यादातर अभी ये मतलब ज़्यादा लोग बोल रहे हैं ABS सिस्टम एंड ऑल. तो वो क्या होता है, सिंपली इसके दो फुल फॉर्म है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. इसका मतलब क्या है, इट मेंटेन्स व्हीकल कंट्रोल. तो व्हीकल का कंट्रोल जो है एंड ABS सिस्टम इंश्योर करता है. डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, अगर सपोज हम फ्रंट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड. ऑप्टिमम डिसेलरेशन वाइल ब्रेकिंग, यानी कि धीरे धीरे जो है हमारे ब्रेक्स अप्लाई होते हैं. एंड ऑप्टिमम जो कंडीशन है, अगर मैं आपको एक मतलब इमेजिन करने कहूँ, सपोज आप बहुत स्पीड में आप एक रोड पे हो और एक मतलब सपोज कोई भी एक हर्डल आ गया, सपोज एक स्टोन आ गया आपके व्हीकल के आगे अचानक से, माउंटेनियस रीजन है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटली ब्रेक पेडल्स पे फोर्स अप्लाई करोगे, राइट. तो उससे क्या होगा कि हमारे व्हील्स के ऊपर एकदम मतलब ऑप्टिमम कंडीशन में इंस्टेंटली जो है ब्रेक अप्लाई होंगे. इसके वजह से अगर समझो ये ABS सिस्टम हमारी व्हीकल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्रेक क्या करेगा, व्हील्स को उसी जगह स्टॉप कर देगा एंड हमारी व्हीकल जो है स्किड होती हुई आगे चली जाएगी किसी भी डायरेक्शन में. इसका मतलब हमारी व्हीकल एक जगह नहीं रुकेगी एंड वो व्हीकल व्हील्स के एक जगह रुकने की वजह से व्हीकल पूरी स्किड हो जाएगी अगर ABS सिस्टम नहीं होगा तो. और अगर ABS सिस्टम होगा तो क्या होगा, सिंपली अगर हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने बहुत इंस्टेंटली ब्रेक अप्लाई किया सेम कंडीशन में, तो हमारे व्हील्स जो है ना एकदम लॉक नहीं होंगे. हमारे व्हील्स मतलब धीरे 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 करके दे विल बी गोइंग इन रिड्यूस पावर, लाइक धीरे धीरे दे विल बी गेटिंग इन द स्टॉप वाइज कंडीशन. एकदम हमारे व्हील लॉक नहीं हो जाएंगे, एकदम रुक नहीं जाएंगे, वो चलते रहेंगे लेकिन बहुत नॉमिनल की स्पीड के साथ. तो इसके वजह से जो है हमारी स्किडिंग जो है एक्शन नहीं होगी एंड देयरफॉर ये ABS सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड आजकल तो गवर्नमेंट ने रूल भी पास किया है कि विदाउट ABS सिस्टम कार्स नहीं होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट रन ऑन द रोड्स. तो ये ABS सिस्टम इंपॉर्टेंट है. आई होप कि मैंने आपको जो इमेजिन करने बोला उसके हिसाब से आपको समझा होगा कि व्हाट इज दिस ABS सिस्टम. ठीक है, इन समरी अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज अ सेफ्टी सिस्टम दैट इंटरवीन्स ड्यूरिंग द हार्ड ब्रेकिंग टू प्रिवेंट व्हील लॉकअप, इंश्योरिंग ऑप्टिमल डिसेलरेशन विथ like while maintaining control and stability. So this you can understand by this ABS system. I hope कि आपको जो समझा है आप उसको थ्योरी में लिख सकते हैं and that is all about this ABS system. ओके, ये ब्लॉक डायग्राम है. अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया तो ये मतलब ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपको एक्सप्लेन करना होगा.
सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेडल से फोर्स आता है, राइट। जब भी अगर ऐसी सिचुएशन है, इंस्टेंट सिचुएशन है, तो पेडल पे फोर्स जाएगा, ड्राइवर पेडल करेगा एंड ब्रेक्स अप्लाई करेगा। वो ब्रेक्स किसके पास जाते हैं? मास्टर सिलेंडर के पास जाते हैं, राइट। मास्टर सिलेंडर क्या करता है? दिस एक्ट्स लाइक द कमांड सेंटर, दिस कन्वर्ट्स पेडल फोर्स इनटू द हाइड्रोलिक प्रेशर। मैंने आपको बताया वो हाइड्रोलिक प्रेशर किधर ट्रांसमिट होगा? ब्रेक लाइंस। ब्रेक लाइंस क्या करती हैं? कैरी करती हैं, एंड किधर कैरी करती हैं? तो एबीएस यूनिट के पास। एबीएस यूनिट, और वी कैन से इट एज हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट ऑल्सो। अब इसको क्या बोलेंगे हम? हमारे एबीएस सिस्टम का ब्रेन बोलेंगे। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ब्रेक प्रेशर। उसके बाद क्या होगा? व्हील स्पीड सेंसर्स में ईच व्हील हैज अ स्पीड सेंसर, रिमेंबर, और वो मेजर करेंगे हाउ फास्ट इट्स रोटेटिंग। देन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ईसीयू, ये देख सकते हो आप, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ईसीयू बाय स्पीड सेंसर। तो ये स्पीड सेंसर्स क्या करेंगे? कंटिन्यूअस सिग्नल प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के पास अबाउट द व्हील स्पीड्स। उसके बाद क्या होगा? ईसीयू प्रोसेसिंग, यानी कि ईसीयू क्या करेगा? प्रोसेस करेगा वो स्पीड इंफॉर्मेशन को रियल टाइम के हिसाब से, एंड दिस एबीएस ईसीयू डिसाइड्स इफ एनी व्हील इज ऑन द वर्ज ऑफ लॉकिंग अप, कि वो लॉक नहीं होने देगा। ये सिस्टम का काम क्या है? वो लॉक नहीं होने देगा हमारे व्हील्स को, एंड इट विल कीप इट इन मोशन, बट इट इज वेरी नॉमिनल मोशन, ठीक है। एडजस्ट करेंगे हम ब्रेक प्रेशर को, तो हमारे ब्रेक प्रेशर्स जो है हाइड्रोलिक प्रेशर के हिसाब से व्हील ब्रेक्स अप्लाई होंगे। तो दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एबीएस, ठीक है। अगेन उसके बाद है हमारे पास कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम कहाँ यूज होगा? डोंट टेक इट एज लाइक योर एसी एंड ऑल विच इज प्रेजेंट इन योर कार। दिस कूलिंग सिस्टम इज रिलेटेड विद द इंजन। हमें इंजन को कूल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो ओवर हीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो, हमें ये 3 इंपॉर्टेंट लॉसेस हैं जो कि हमें कंसिडर करने होते हैं। अगर इफ हीट लॉस्ट टू सिलेंडर वॉल इज नॉट डिसिपेटेड और रिमूव्ड, दिस लीड्स टू व्हाट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट लीड्स टू डैमेज ऑफ सिलेंडर ड्यू टू ओवरहीटिंग, सीजिंग ऑफ पिस्टन ड्यू टू ओवरहीटिंग, एंड बर्निंग ऑफ द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ये 3 चीज़ों की होने की मतलब मेजरली पॉसिबिलिटीज हैं अगर हमारा मतलब कूलिंग नहीं हो पाया। तो दिस इज हाउ वाई कूलिंग सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। हमारे पास 2 मेथड्स हैं कूलिंग के, एयर कूल सिस्टम और वाटर कूल सिस्टम। अब इसके साथ तो हम बहुत फेमिलियर हैं। एयर कूलिंग सिस्टम क्या है? जो कि इंजन को डायरेक्टली एयर पास होती है, नेचुरल फ्लो, और वाटर कूलिंग सिस्टम रेडिएटर थ्रू होता है। तो ईच सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। देखते हैं हम, फर्स्ट हम देखेंगे एयर कूलिंग सिस्टम। अब इसमें यहाँ पर आपको कौन सा कंसिडर करना है? ये वाला एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक, ये वाला डायग्राम, ठीक है। सिंपल ये वाला डायग्राम आपको वर्किंग में तो नहीं इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वाला डायग्राम आपको दिया है। अदरवाइज एयर कूलिंग सिस्टम का जो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, दैट इज मतलब इसके बाद है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी आपको ये समझना है कि इमेजिन द एयर कूलिंग सिस्टम, दैट इज हमारी नेचुरल ब्रीज, ठीक है। नेचुरल एयर जो है वो हमें इमेजिन करनी है, कीपिंग द इंजन कूल। अब इसको हम ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? ये स्पार्क प्लग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग क्या करेगा? दिस स्पार्क प्लग इज लाइक इग्निशन पॉइंट स्पार्किंग द कंबशन प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास पिस्टन प्रेजेंट है। पिस्टन क्या करता है? पिक्चर इट एज द इंजिन्स बीटिंग हार्ट, मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। हमारा जो पिस्टन है मूव करता है अप एंड डाउन, तो बस उसका वही काम है पिस्टन का, मूव करना टू एंड फ्रो। फिर उसके बाद हमारे पास ये कनेक्टिंग रॉड प्रेजेंट है, देख सकते हो आप ये कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है? ये एक लिंक है जो कि ट्रांसफर करती है पिस्टन का मोशन टू द क्रैंक। उसके बाद क्रैंक है, थिंक ऑफ इट एज द इंजिन्स रोटेशनल फोर्स जनरेटर, ठीक है। फिर हमारे पास ये फिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये फिन्स आप देख रहे हो, ये फिन्स कैसे हैं? ये जो इंजन को हम देख सकते हैं ना, इंजन को जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वो फिन्स हैं। दीज आर लाइक कूलिंग विंग्स वी कैन कंसिडर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इनका काम ही है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर एफिशिएंट हीट डिसिपेशन, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको याद, मतलब ये डायग्राम आपको कंसिडर नहीं करना है, डोंट रिमेंबर दिस डायग्राम, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया कैसे वर्क होता है। पहले तो अगर हीट जनरेशन हुई तो ड्यूरिंग कंबशन द सिलेंडर हीट्स अप ड्यू टू एनर्जी रिलीज्ड, देन कंडक्शन टू फिन्स, यानी कि जो वो हीट जनरेट हुई है वो कहाँ जाती है? फिन्स के पास जाती है, विच इज सराउंडिंग द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के साइड में ही तो फिन्स प्रेजेंट है। एंड फिर क्या होता है? एज द मोटर साइकिल कंसिडर वो मूव हो रही है तो एयर फ्लो करता है उसके इंजन के थ्रू। तो ये क्या करता है? वो जो सारी फिन्स के ऊपर जो हमने हीट दे दी है ना, वो सारी हीट को कैरी फॉरवर्ड कर लेती है और एयर फ्लो में वो हीट डिसिपेट हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है? हमारा इंजन कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये एफिशिएंट
कूलिंग होती है विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस फिन्स। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा डायग्राम कंसिडर करना है। ये वाला डायग्राम है एयर कूलिंग सिस्टम का, मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्लियरली दिखाया है, ठीक है। ये एयर कूलिंग सिस्टम के लिए ये वाला डायग्राम आपको कंसिडर करना है। आई होप कि ये वाला सिंपल है उससे, ठीक है। जस्ट आपको सिलेंडर्स कंसिडर करने हैं एंड द मेन पार्ट आपको इसमें फिन्स दिखाने हैं। सिंपली क्या होता है, देखो हमें बस इतना विजन करना है कि हमें अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो भी है हीट जनरेट हो रही है वो क्या करता है, फिन्स के ऊपर अपनी हीट दे देता है। और जैसे हमारी मोटरसाइकिल्स हमारी चल रही होती है दैट टाइम्स क्या होता है कि वो फिन्स के ऊपर जो भी हमने हीट ट्रांसमिट करी थी वो सब एयर के थ्रू चली जाती है एंड हमारा इंजन जो है वो कूल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एयर कूलिंग सिस्टम। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये सब आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन राइट योर थ्योरी अलॉन्ग विद इट, ओके। उसके बाद हमारे पास होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए ये वाला डायग्राम मैंडेटरी है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप एक बार ड्रॉ करोगे आपको खुद समझ जाएगा कि कितना सिंपल डायग्राम है। जस्ट आपको वाटर कूलिंग सिस्टम कब यूज़ होता है, जबकि एयर कूलिंग सिस्टम मतलब वर्क ना हो पाए, यानी कि हमारी व्हीकल लाइक सपोज मैंने कब बोला आपको, एयर कूलिंग सिस्टम जो फ्रंट इंजन जब होंगे हमारे दैट टाइम हमें एयर जो है हमारे एयर थ्रू हमारा इंजन जो है वो कूल हो जाता है, इसके वजह से एयर कूलिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। बट जब हमारे दैट पॉसिबल नहीं है, हमारा रेयर इंजन है या फिर ऐसी कंडीशन है जब हम एयर प्रेजेंट ही नहीं है, दैट टाइम हमें वाटर कूलिंग सिस्टम को यूज़ करना होता है एंड दिस सिस्टम इज़ यूज्ड, जिसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हेडर टैंक प्रेजेंट है। हेडर टैंक क्या करता है, कूलेंट को होल्ड करता है, ठीक है, कूलेंट होल्ड करता है। अब यहाँ पर कूलेंट क्या है, ऑफ कोर्स वाटर यूज़ कर रहे हैं हम वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर, तो वो वाटर को होल्ड करता है, सिंपल रखेंगे। फिर ये एयर फ्लो हो रही है, देख रहे हो आप, ये एयर फ्लो मैंने शो किया है। तो ये एयर फ्लो क्या करेगी, एज द मोटरसाइकिल मूव्स एयर फ्लोज नेचुरली अराउंड द इंजन। देन हमारा इंजन क्या करता है, देखो ये इंजन है, ये पूरा इंजन है। दिस इंजन इज लाइक इट इज जनरेटिंग द हीट ड्यूरिंग कंबशन, ठीक है। ये हीट किधर ट्रांसफर होती है, देखो ये जो फैन है ना, ये फैन क्या कर रहा है, हमारी जो फ्लो ऑफ एयर आ रही है ना वाटर के थ्रू, तो ये इंजन की तरह पास कर रहा है एंड उससे क्या हो रहा है, हमारा इंजन कूल डाउन हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये फैन प्रेजेंट है। अगेन दिस फैन क्या करता है, असिस्ट करता है वो हीट डिसिपेशन को। देन ये ट्यूब्स देख सकते हो आप, ट्यूब्स जो है इनके अंदर फिन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि एयर कूलिंग सिस्टम में प्रेजेंट है, यहाँ पर शॉर्ट फिन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, एफिशिएंटली कैरी करते हैं हमारे वाटर को और हीट डिसिपेट करता है, ठीक है। फिर कूलेंट, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कलेक्टर टैंक, तो यहाँ पर कूलेंट जो है रिजर्वायर की जैसे कि ऊपर से आता है और नीचे कूलेंट चला जाता है, सो नीचे जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। एंड देन वो ड्रेन आउट हो जाता है, ये आप देख सकते हो ड्रेन टैप है, ठीक है, ये ड्रेन टैप है, इधर ये आउटलेट टाइप है एंड यहाँ पर से क्या होता है, कंट्रोल कर सकते हैं हम हमारे रिलीज को, वाटर रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वाटर कूलिंग सिस्टम। अगर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं तो वर्किंग कैसे समझ सकते हो आप, पहले तो हीट एब्जॉर्प्शन, द कूलेंट एब्जॉर्ब्स हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंबशन इन द इंजन, कूलेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। फिर सर्कुलेशन होता है, यानी कि पंप सर्कुलेट करता है वो कूल वाटर को पूरे ट्यूब्स के ऊपर, इसके वजह से अगर जो भी एयर आ रही है लेफ्ट साइड से हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर एयर फ्लो हो रही है, बीच में सारे वाटर ट्यूब्स है, तो उससे एयर क्या हो रही है, ठंडी होकर हमारे इंजन की तरफ जा रही है और वो फैन जो है उसको और रोटेशनल एनर्जी में लाके वो इंजन की तरफ दे रहा है एंड हेंस हमारा इंजन जो है वो कूल डाउन हो रहा है इस कंडीशन में। तो दिस वाज अबाउट वाटर कूलिंग सिस्टम। आप देख सकते हो ये ऐसा होता है, ठीक है, मेजरली ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये जो है मतलब ये है मतलब स्मॉल पार्ट आप देख सकते हो ट्यूब्स के अंदर ऐसे जो है ट्रांसफर होता है वाटर, ठीक है। ये फैन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इसको हम कार का नर्वस सिस्टम, आप बोलोगे कि मैं पूरे बॉडी के थ्रू इसको समझा रही हूँ, बट एक व्हीकल भी एक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ही है, तो इसको भी हम वैसे ही समझेंगे तो इट विल बी ईजियर। तो हम इसको एक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम आया तो आपको गेयर्स ध्यान में रखना है, ठीक है, व्हाट आर गेयर्स एंड ऑल। तो ट्रांसमिशन सिस्टम है तो गेयर्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंजन प्रेजेंट है, ठीक है, सेम इंजन के पीछे क्लच होगा एंड उसके पीछे हमारा गियर बॉक्स प्रेजेंट होता है, ये गियर बॉक्स प्रेजेंट है। वही स्ट्रक्चर है जो हमने चैसिस में देखा था, ये ड्राइव शाफ्ट दैट मीन्स हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है, ये डिफरेंशियल है, देन ये हमारे पास ये फ्रंट एक्सल है जिसके साथ फ्रंट व्हील है और रेयर एक्सल जिसके साथ रेयर व्हील है। तो ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का जस्ट एक लेआउट है। अब आई डोंट थिंक कि मुझे सबका फंक्शन बताना पड़ेगा, यहाँ पर इंजन, क्लच और डिफरेंशियल क्या कर रहे हैं, सो जस्ट ये लेआउट है हमारे पावर
पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का, तो जिसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लच के बारे में। तो क्लच के क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो कि ये मैंने एक चार्ट दिखाया आपको, पॉजिटिव क्लच, फ्रिक्शन क्लच, देन ऑल द टाइप्स, बट यहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ना है सिंगल प्लेट क्लच के बारे में एंड मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच की भी थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बट सिंगल प्लेट क्लच ही हमें जो है कंसिडर करना है। इट इज़ द पार्ट, मेन पार्ट ऑफ दिस क्लच। तो ये डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल प्लेट क्लच, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है ये ड्राइविंग प्लेट है, ठीक है, ड्राइविंग प्लेट, और इसको हम बोलेंगे ड्राइव वन प्लेट। अब आपको रिमेंबर, आप अपने हिसाब से करो कि आप ड्राइविंग प्लेट आपको इसको बोलना है और ड्राइव वन प्लेट आपको इसको बोलना है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ड्राइविंग प्लेट का काम क्या होता है, अगर हम ड्राइविंग प्लेट का काम समझें तो ये कनेक्ट करता है हमारे इंजन को, ठीक है। अब इंजन से तो हमारी क्या है, पावर जनरेट हो रही है, तो उसके साथ हमें जो कनेक्शन चाहिए वो ड्राइविंग प्लेट करता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये ब्लैकिश जो है ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, जो कि हमारे ड्राइव वन प्लेट के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, ग्रिप प्रोवाइड करती है एंड अलाउज कंट्रोल ओवर द पावर ट्रांसफर, ठीक है। फ्रिक्शन लाइनिंग के बारे में समझ लिया। ड्राइवन प्लेट क्या करेगी, ड्राइवन प्लेट लाइक इट इज एज अ रिसीवर इंगेजिंग विद द ड्राइविंग प्लेट टू ट्रांसमिट द पावर, ठीक है। फिर हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग आप देख सकते हो, ये हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग प्रेजेंट है ना, दिस इज योर हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, ठीक है। ये आप रबर बैंड की तरह अगर समझो तो टेंशन एब्जॉर्ब करने का काम है, पुशिंग द ड्राइवर प्लेट अवे फ्रॉम द ड्राइविंग प्लेट, ठीक है। और इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट स्लीव, अब यहाँ पर इंगेजमेंट ये आप देख सकते हो, ये स्लीव प्रेजेंट है, ठीक है। ये कनेक्टर का काम करती है, जो कि इंगेजमेंट। अब सपोज मैं आपसे पूछूं क्लच का काम क्या है, मैंने आपको अभी बताया था क्लच का काम क्या होता है, इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करना हमारे गियर्स का। सो यहाँ पर वही काम करना है। एंड ये लीवर क्या करेगा, देखो आप, ये लीवर है, ये लीवर क्या करेगा, इट लाइक सीसॉ की तरह ये वर्क करता है, कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट स्लीव। फिर ये जो है क्लच पेडल है, ये क्लच पेडल जो है हमारे ड्राइवर के हैंड में होता है। इमेजिन इट एज योर फुट and providing input to control the clutch engagement and disengagement in the case of कार, ठीक है। सो यही हो गया हमारा सिंगल प्लेट क्लच। जस्ट आपको एक बार डायग्राम इमेजिन करना है एंड यहाँ पर सिंपल आपको क्या दिखाना है, इंपॉर्टेंट ड्राइवन प्लेट दिखाना इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग प्लेट एंड देन ड्राइवन प्लेट। उसके बाद आपको ये रॉड दिखाना इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। उसके बाद आपको ये हेलिकल स्प्रिंग दिखाना इंपॉर्टेंट है एंड ये लीवर दिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कुछ पॉइंट्स भूल भी जाते हो बट आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। बट रिमेंबर कि आप मोस्ट ऑफ द जो लेबलिंग है वो कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। वर्किंग कैसे होता है, ड्राइविंग प्लेट कनेक्ट होती है हमारे इंजन के साथ, तो जो भी पावर ट्रांसमिट होती है वो ड्राइविंग प्लेट के पास जाती है। फिर फ्रिक्शन लाइनिंग ऑन द ड्राइविंग प्लेट, जो हमारी लाइनिंग आप देख सकते हो वो ग्रिप करती है ड्राइवन प्लेट के साथ, और एज द ड्राइविंग प्लेट रोटेट्स इट ट्रांसफर्स पावर टू द ड्राइवन प्लेट थ्रू दिस फ्रिक्शन लाइनिंग। उसके बाद जो कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है, हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, ये फोर्स एक्सर्ट करती है पुशिंग ड्राइवन प्लेट अवे फ्रॉम द ड्राइविंग प्लेट व्हेन द क्लच इज डिसएंगेज्ड, ठीक है। और जब इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट यूज करना होता है तो ये इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट स्लीव यूज होती है, जो कि कंट्रोल करता है कौन, हमारा लीवर, और लीवर को कौन कंट्रोल करता है, क्लच पेडल, ठीक है। तो दिस स्लाइड्स द ड्राइवन प्लेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ड्राइविंग प्लेट। अब ये स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो जाती है, जब क्लच इंगेज होगा तो प्लेट्स क्या होंगी, प्रेस होंगी टुगेदर जब क्लच को इंगेज करना होगा, और जब हमें क्लच को डिसएंगेज करना है सो दे विल बी अवे, और क्लच डिसएंगेजमेंट में आके, ठीक है, समझिए, सेपरेट हो जाएंगी। तो दिस पावर ट्रांसमिशन इज इंटरप्टेड, इसमें हमें इंजन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। सो इन समरी हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल प्लेट क्लच सर्व्स एज अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन इंजन एंड ट्रांसमिशन। दिस अलाउज engagement and disengagement for smooth gear shifting and it's like the conductor, like हम कंडक्टर की अगर बात करें so suppose वो engagement disengagement करने की काम करते हैं। so this was all about your single plate clutch, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है मैंने यहाँ लिखी है। एंड यहाँ पर एट शॉर्ट में मल्टीप्लेट क्लच के बारे में लिखा है, इट इज़ नॉट आस्क्ड, सो जस्ट एक स्मॉल पैराग्राफ अबाउट इट। मल्टीप्लेट क्लचेस दीज आर यूज्ड इन हेवी व्हीकल्स लाइक रेसिंग कार्स और मोटरसाइकिल्स के अंदर यूज होता है फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क एज कम्पेयर टू सिंगल प्लेट क्लचेस। दीज आर स्मूथ एंड ईजी टू ऑपरेट ड्यू टू देयर असेंबली ऑफ फ्रिक्शन सर्फेस कॉन्टैक्ट। इट मे बी यूज्ड वेयर द सर्फेस इज वेरी लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सिंगल प्लेट क्लच, तो वो डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। एंड आप फंक्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे
मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़े बहुत और फिर उसका फंक्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सिंगल प्लेट क्लच। अब हम आ जाते हैं गियर ड्राइव के ऊपर। तो ये गियर्स हैं, अब आपको बहुत सारे गियर्स देखने मिलेंगे इसके आगे। तो गियर ड्राइव देखो हम देख सकते हैं अब इसके आगे क्या होगा। तो ये है टाइप्स ऑफ गियर्स, हेलिकल गियर, स्पर गियर, रैक पिनियन गियर। अब मैंने जो आपको दिखाया था ना, जो हमने रैक पिनियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म में यूज किया था, वो रैक पिनियन अरेंजमेंट इस गियर का होता है, ठीक है। तो जब ये इंगेज होते हैं तभी हमारा स्टीयरिंग कॉलम जो है आगे हमारा पावर ट्रांसमिट कर पाता है, ठीक है। तो ये रैक पिनियन गियर है, वॉर्म गियर्स, बीवेल गियर्स, स्प्रॉकेट्स गियर्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ गियर्स हैं। देखते हैं हम एक एक करके। ये हेलिकल गियर है, देखिए ये आप देख सकते हो, मैंने दिखाया है आपको। ये हेलिकल गियर है। कैसे हो रहा है, हम एक गियर को मूव कर रहे हैं तो नीचे वाला भी कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है उसी के साथ। सो दिस इज अबाउट हेलिकल गियर। आई थिंक आपको इससे ज़्यादा इजीली समझेगा। उसके बाद बी वेल गियर्स, देखो आप देख सकते हो बी वेल गियर्स कैसे हैं, ठीक है। दोनों भी 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट है, एक साइज में छोटा है एक साइज में बड़ा है, ठीक है। ये होता है बी वेल गियर्स। उसके बाद ये वाले गियर्स, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ गियर्स हैं। ये रैक और पिनियन गियर है, आप देख सकते हो रैक और पिनियन गियर, ठीक है। इसके बाद ये है वॉर्म गियर्स। इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हो, इसमें ऊपर मतलब स्प्रिंग टाइप है एंड वो जब मूव हो रहा है, अब उस ये रोटेशन जो है बहुत स्लो है, ठीक है। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ गियर्स आ गए तो आपको जस्ट टाइप्स ऑफ गियर्स लिखने हैं, ठीक है। ये ऐसा अरेंजमेंट होता है इनका। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स क्या करता है, हमारी स्पीड और पावर को मैनेज करने का काम हमारा गियर बॉक्स करता है, ठीक है। अब उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 4 फंक्शंस लिखे हैं। फर्स्ट क्या है, गियर बॉक्स रिड्यूसेस द स्पीड एंड इंक्रीजेस द टॉर्क, यानी द गियर बॉक्स रिड्यूसेस द engine speed while increasing the torque, adapting the power for optimal performance. Then we have gearbox provides wide range of speed and torque to the vehicle. हमारे पास wide range है, variety of speed है, ठीक है, for different driving conditions. Then reverse motion by engaging reverse gears by gearbox allowing the vehicle to move backward. फिर neutral position, neutral position में क्या होता है, gearbox disconnect करता है engine के साथ, so ये neutral position के अंदर होता है. So these are all the functions of gearbox. हमारे पास 3 टाइप के gear बॉक्सेस हैं जिसमें हमें सिर्फ 2 पार्ट्स को पढ़ना है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। सिंक्रो मैश गियर बॉक्स भी है बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो इट इज नॉट आस्क्ड। सो स्लाइडिंग मैश एंड कांस्टेंट मैश, दीज आर द टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस व्हिच वी हैव टू स्टडी। स्लाइडिंग में क्या होता है, देखो ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा, वी हैव क्लच शाफ्ट, ये जो है ये क्लच शाफ्ट है और ये क्लच गियर है। तो अगर हम क्लच शाफ्ट के बारे में बात करें, सो दिस इज द इनपुट शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द इंजन। उसके बाद क्लच गियर प्रेजेंट है। क्लच गियर क्या है, हमारा फर्स्ट गियर है। पिक्चर इट एज द इनिशियल गियर कनेक्टेड टू द क्लच शाफ्ट। उसके बाद है स्लाइडिंग गियर, ये जो स्लाइडिंग गियर आपको दिख रहा है, स्लाइडिंग मैश, ठीक है, ये पूरा स्लाइडिंग मैश है। इससे क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स मैकेनिज्म दैट अलाउज गियर्स टू स्लाइड इनटू द इंगेजमेंट। फिर सेकंड गियर, ये सेकंड गियर क्या करता है, थिंक लाइक हम गियर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर टू द मेन शाफ्ट। फिर हाई स्पीड गियर्स एंड ऑल, तो ये सब स्ट्रक्चर है हमारे स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ये ले शाफ्ट प्रेजेंट है, अगेन इसके भी इंपॉर्टेंस है मेंटेनिंग द मेन शाफ्ट, हम इसको बोलते हैं क्योंकि आउटपुट शाफ्ट है, इट कनेक्ट्स द व्हीकल व्हील्स, ठीक है। तो ये हमारे स्लाइडिंग मैश के कंपोनेंट्स के बारे में हो गया। अब अगर मैं इसकी वर्किंग बताऊं तो न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा, इन न्यूट्रल द क्लच इज डिसएंगेज्ड एंड नो गियर्स आर कनेक्टेड। न्यूट्रल पोजीशन में, अब हम सब ने गाड़ी तो चलाई है, हमें पता है कि गियर्स कैसे वर्क करते हैं। तो न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, क्लच हमारा डिसएंगेज होता है और कोई भी गियर कनेक्ट नहीं होता है। द इंजन इज रनिंग बट पावर इजंट ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स। इंजन रन पोजीशन में होता है लेकिन पावर ट्रांसमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर एंड रिवर्स गियर कैसे होता है। तो क्लच एंगेजमेंट हमें इसके अंदर समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट गियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जब हम गियर मैश करेंगे तो पावर फ्रॉम द इंजन इज ट्रांसमिटेड टू द मेन शाफ्ट थ्रू द इंगेज्ड फर्स्ट एयर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे इंगेज हो गए हैं फर्स्ट गियर, ओके। तो ये इसके वजह से ले शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट के पास जो है वो पावर ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आप सेकेंड गियर देखेंगे, ये सेकंड गियर है। सेकंड गियर में हम कैसे बता सकते हैं कि द ड्राइवर मूव्स गियर लीवर टू सिलेक्ट द सेकंड गियर, सो द स्लाइडिंग मैश अनेबल्स द
second gear on the clutch shaft to mesh with the corresponding gear. I think you are understanding. main shaft से second gear कैसे connect होगा. FE आप देख सकते हो इसमें connected है और यहाँ पर ये first gear में DC जो है वो meshed है. तो इस हिसाब से जो भी mesh position में होंगे वो gear जो है पड़ता है like that. So second gear power transmission. यहाँ पर आप third gear में देख सकते हो कैसे power transmit हो रहा है और ये है reverse gear. अब आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, तो आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम सिंपली बनाना है जिसमें क्लच शाफ्ट दिखानी है, क्लच गियर है, मेन शाफ्ट और ले शाफ्ट है. जो ले शाफ्ट है वो आउटपुट शाफ्ट है. वी ऑल्सो कॉल इट एज काउंटर शाफ्ट. देन फर्स्ट और रिवर्स गियर जो है वो फर्स्ट और रिवर्स गियर हमारा फर्स्ट गियर है. एंड देन रिवर्स गियर कब यूज करते हैं, जब हमें हमारे व्हीकल को रिवर्स मूव कराना है दैट टाइम. तो ये किसके बारे में हो गया, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में हो गया. आई थिंक ये आपको समझा होगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को. फिजिकली स्लाइड हो रहे हैं हमारे सारे गियर्स और ये प्लेस हो रहे हैं फॉर एंगेजमेंट. जिधर भी प्लेस होंगे वो वाला मतलब वो वाला गियर जो है पड़ता है. सो द क्लच अनेबल्स डिसएंगेजमेंट एंड री एंगेजमेंट ऑफ गियर्स अलाउइंग द ड्राइवर टू शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट स्पीड्स एंड टॉर्क्स एंड नीडेड. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स हो गया. ठीक है, ये वाले तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड रिवर्स गियर लिया था. इसके बाद ये एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस है जो हमें समझना है फॉर स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स. आई थिंक ये आप समझ सकते हो. इफ़ यू रीड दिस यू विल बी गेटिंग अंडरस्टैंडिंग. देन इसके बाद ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर. अब मैंने आपको बता दिया, आप डायग्राम के हिसाब से जो समझे हो वही आप लिख सकते हो. एक बार आप ये वाली थ्योरी भी पढ़ लें, देन इट विल बी ईजियर. ठीक है, ये रिवर्स गियर के बारे में है. अब ये है देखो, ये मैंने मतलब एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है फर्स्ट गियर कैसे पढ़ रहा है. ठीक है, फर्स्ट गियर देखो इनपुट शाफ्ट से जो भी आ रहा है वो आउटपुट शाफ्ट में कैसे जा रहा है, जहां पर जो गियर कनेक्टेड है, राइट. ये वाला गियर आप देख सकते हो, ये गियर मैश्ड है तो इसी से जो है वो पावर ट्रांसमिट. उसके बाद ये सेकेंड गियर है. सेकेंड गियर में आप देख सकते हो कि ये वाला जो है मैश्ड है, इसके वजह से इसी में से जो है वो पावर ट्रांसमिट होके यहाँ पे जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, राइट. उसके बाद देखें ये थर्ड गियर है. थर्ड गियर कैसे कनेक्ट हो रहा है, राइट, और पावर जो है सीधा आउटपुट जा रही है. तो ये थर्ड गियर हो गया. अब आ जाते हैं हम कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में. इसमें क्या होता है, इसमें मतलब हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं गियर्स. ठीक है, इसमें मतलब हम देखें तो फ्रॉम इंजन, देन सिलेक्टर, फोर्क, आइडलर गियर. इसके अंदर आइडलर गियर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो क्लच मैश कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के अंदर होता है. तो इट इज़ अ सेट ऑफ गियर्स. अब अगर हम कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो ये सेट ऑफ गियर्स हैं जो कि हमेशा ऑलवेज मैश कंडीशन के अंदर है. तो इसकी वजह से हमें स्मूथ और फास्टर गियर शिफ्ट करने में हेल्प होती है कांस्टेंट मैश से. अगर हम इनपुट शाफ्ट देखें यहाँ पर, सो दिस इज कनेक्टेड टू इंजन एंड कंटिन्यूसली इट रोटेट्स. देन ले शाफ्ट, अगेन वही काम है ले शाफ्ट का आउटपुट पावर करने का. देन डॉग क्लच भी प्रेजेंट होता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के अंदर. इट्स अ टाइप ऑफ एंगेजमेंट मैकेनिज्म विच अलाउज गियर्स टू बी लॉक्ड टू द शाफ्ट. ठीक है, ये आउटपुट शाफ्ट के बारे में समझ लिया. हम न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, ऑल गियर्स ऑन द ले शाफ्ट आर फ्री टू रोटेट इंडिपेंडेंटली. नो पावर इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट शाफ्ट. न्यूट्रल पोजीशन का तो दोनों जगह सेम है. फिर क्लच इंगेज होगा तो क्लच इंगेज में क्या होगा, वेन एवर द ड्राइवर प्रेसेस द क्लच पेडल, सो इंजन क्या करता है, डीकपल कर देता है गियर बॉक्स को और हमें अलाउ करता है गियर शिफ्ट करने के लिए. किसको, ड्राइवर को. फिर हम गियर सिलेक्ट करते हैं, ड्राइवर सिलेक्ट्स द गियर बाय मूविंग द गियर लीवर. फिर डॉग क्लच क्या करता है, विच इज एसोसिएटेड विद द चूजन गियर ऑन द ले शाफ्ट, वो इंगेज कर देता है वो गियर को. उसके बाद सिंक्रोमैश एक्शन होता है बिफोर द डॉग क्लच फुल्ली इंगेजेस. सिंक्रोमैश कौन क्या करता है, इट हेल्प्स इक्वलाइज द स्पीड ऑफ द इंगेज्ड गियर एंड द ले शाफ्ट इंश्योरिंग अ स्मूदर मैश. फिर पावर ट्रांसमिशन हो जाती है. विद द गियर इंगेज, पावर इज नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू द मैश्ड गियर्स एंड टू द आउटपुट शाफ्ट. उसके बाद अगेन अगर हमें गियर डिसएंगेजमेंट करनी है तो अगेन द सेम थिंग, टू शिफ्ट द गियर्स ड्राइवर प्रेसेस द क्लच पेडल अगेन और डॉग क्लच डिसएंगेज हो जाता है करंट गियर के साथ और अगेन फ्री रोटेशन हो जाती है. तो सिलेक्शन ऑफ न्यू गियर, अगेन द ड्राइवर सिलेक्ट्स न्यू गियर एंड द प्रोसेस रिपीट्स विद द सिंक्रोमैश असिस्टिंग दिस स्मूथ एंगेजमेंट. आपको समझा होगा आई थिंक ये कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स. इसमें क्या है, हम क्विक एक्शन ले सकते हैं. स्मूदर गियर शिफ्ट्स इज प्रोवाइडेड एंड दिस एंश्योर्स transition, seamless transition between gears and the driver selects the different speeds. ठीक है,
ये कंस्ट्रक्शन, अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हो, गियर बॉक्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, प्रोपेलर शाफ्ट दिख रही है। ये प्रोपेलर शाफ्ट आप देख सकते हो, ये क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट का क्या फंक्शन है, इट इज अ इनपुट शाफ्ट, इट कनेक्ट्स टू द इंजन ट्रांसमिटिंग पावर टू द डिफरेंशियल। फिर हमारे पास पिनियन है, देखो ये पिनियन गियर आपको दिख रहा है। पिनियन गियर क्या है, फर्स्ट गियर विच रिसीव्स द पावर फ्रॉम द प्रोपेलर शाफ्ट। फिर आर्म प्रेजेंट है, ये आर्म दिख रहा है आपको, आर्म क्या है, स्पाइडर गियर भी बोलते हैं इसको। सो दीज आर गियर्स विच आर अरेंज्ड लाइक आर्म्स कनेक्टिंग पिनियन गियर टू द डिफरेंशियल केस। डिफरेंशियल केस के साथ कनेक्ट करने के लिए पिनियन को आर्म यूज होता है। फिर डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्हील डिफरेंशियल गियर है, व्हील डिफरेंशियल गियर। ठीक है, ये सब डिफरेंशियल गियर्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, मेश कर देते हैं गियर्स को एंड अलाउस पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको और क्या दिख रहा है, स्पिंडल दिख रहा है। स्पिंडल का काम क्या है, ये कनेक्ट करता है व्हील्स को, डिफरेंशियल गियर्स के व्हील्स को और व्हील शाफ्ट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है, और क्राउन गियर प्रेजेंट है। क्राउन गियर क्या करता है, द लार्ज, इट इज कॉल्ड एज अ लार्ज गियर दैट मैशेज विद द व्हील डिफरेंशियल गियर। अब इसकी वर्किंग क्या है, अब देखो पावर इनपुट होगी, पावर फ्रॉम द इंजन ट्रेवल्स थ्रू द प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट से जो है हमारी पावर इंगेज होती है। ठीक है, तो पावर फ्रॉम द इंजन ट्रेवल्स थ्रू द प्रोपेलर शाफ्ट टू द पिनियन गियर, यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो गई पिनियन गियर तक। उसके बाद क्या होता है, द पिनियन गियर रोटेट्स द स्पाइडर गियर्स विच आर कनेक्टेड टू द डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट रोटेट्स एंड द डिफरेंशियल ट्रांसमिट्स द रोटेशन टू द व्हील डिफरेंशियल। उसके बाद गियर एंगेजमेंट होता है वेयर व्हील डिफरेंशियल गियर मैशेस विद द क्राउन गियर। ये जो क्राउन गियर है इसके साथ मैश होते हैं हमारे गियर्स एंड देन द डिफरेंशियल अलाउज फ्रॉम फॉर डिफरेंट व्हील स्पीड्स प्रिवेंटिंग बाइंडिंग एंड एंश्योरिंग द स्मूथ टर्न्स। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेयर व्हील्स के पास, हमारे ये जो व्हील्स प्रेजेंट है इनके पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस डिफरेंशियल एंश्योर्स दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रेयर व्हील्स अलाउइंग देम टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, फिर व्हील शाफ्ट ट्रांसमिशन से क्या होता है, हमारा स्पिंडल ट्रांसमिट कर देता है, ये जो स्पिंडल प्रेजेंट है ये स्पिंडल ट्रांसमिट कर देता है हमारी पावर को एंड इसके वजह से हमारे रेयर व्हील जो है वो रोटेट करते हैं। तो इन समरी हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल गियरबॉक्स अनेबल्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू रेयर व्हील्स अकोमोडेटिंग वेरिएशंस इन व्हील स्पीड्स ड्यूरिंग द टर्न्स एंड दिस मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग द व्हील बाइंडिंग इन व्हीकल्स। ठीक है, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना, आई विल सजेस्ट यू कि आप ये डायग्राम 2 बार प्रैक्टिस करें एंड जो मैंने आपको फंक्शन बताया है आप इसको रिपीट करके देखेंगे एंड आई थिंक वो आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल गियरबॉक्स हो गया, देखो इसका एनिमेशन कैसे डिफरेंशियल गियरबॉक्स वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद ये एक और है जो मैं जिसमें मैंने क्राउन गियर और इनपुट पिनियन सन गियर्स प्लैनेट्स दिखाए हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गियरबॉक्स आप ये सब पढ़ सकते हो, राइट एंगल में सिचुएटेड है एंड ऑल। ठीक है, अब प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट, इनका फंक्शंस तो हमें पहले से ही पता है, प्रोपेलर शाफ्ट का और यूनिवर्सल जॉइंट का। जस्ट आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या लिखना है एग्जाम्स के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आया, प्रोपेलर शाफ्ट का फंक्शन है, 3 functions I have written over here, that it transmits rotary motion of gearbox output shaft to differential and then to wheels through the axle shaft. Then it transmits motion at some angle which varies frequently. Then the propeller shaft transfers the distant power from gearbox to the rear axle. ये 3 functions है for propeller shaft. Then ये universal joints के बारे में लिखा है, if you want you can read it. This is the animation for the universal joint. वी हैव एक्सेल्स, एक्सेल्स में क्या होता है, फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल वही है, तो ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नहीं है। सो मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप रीड आउट करके जा सकते हैं। सो आप किसी भी चीज़ से मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो। सो फ्रंट एक्सल के बारे में भी आप लिख सकते हो, लाइक ये सारे पॉइंट्स आई हैव रिटन फॉर यू, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। ठीक है, रेयर एक्सल के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं, जस्ट आप एक बार रीड कर लोगे ना, आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। Then we have the last part, that is vehicle active and passive safety arrangement. Active और passive safety arrangement, ये 2 टाइप के safety arrangements होते हैं, जिसमें like active safety arrangement के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो active safety arrangement is like having a watchful guardian. It like वो कब वर्क करता है, एक्टिव जो है, एक्टिव सेफ्टी सिस्टम हमेशा वर्किंग पोजिशन में होता है। जब भी व्हीकल रन हो रही है ना, जब उस टाइम तक एक्टिव जो सेफ्टी अरेंजमेंट है
वर्किंग पोजीशन में होता है, और पैसिव अरेंजमेंट कब होता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तब पैसिव सेफ्टी अरेंजमेंट काम आता है. सो द डिजाइन ऑफ व्हीकल शुड बी सच दैट द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. सो सेकेंडली, इफ देयर इज एक्सीडेंटली एनी चांस, द इंजरी टू द कंपोनेंट्स ऑक्यूपेंट्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर शुड बी मिनिमम. ठीक है, तो एक्टिव सेफ्टी अरेंजमेंट्स में क्या क्या है. एक्टिव सेफ्टी अरेंजमेंट्स में हमारे पास कौन से सिस्टम है. देखो, एबीएस सिस्टम है हमारे पास, फिर बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं, एयर बैग्स एंड ऑल, ये सब सिस्टम्स हैं जो कि पैसिव सिस्टम होते हैं. हमारे पास सीट बेल्ट्स हो गए, ये सब पैसिव सिस्टम होते हैं. तो एक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ें, तो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स आर दोज दैट इम्प्रूव ड्राइविंग सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी डिजाइन. ठीक है, जिससे कि एक्सीडेंट्स हो नहीं पाए, बिफोर दे हैपन हम उसको प्रिवेंट कर दें. ठीक है, सो दीज आर टेक्नोलॉजी सिस्टम असिस्टिंग द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट. दे आर ऑल्सो referred as primary safety system. After active safety system, use an understanding of the state of the vehicle to both avoid and minimize the effect of crash. Modern vehicle has various electronic sensors and microprocessor controlled actuators that assist driver to have better control on the vehicle. These forward looking technologies are expected to play an increasing role in accident avoidance and mitigation. तो ये है एक्टिव सेफ्टी सिस्टम. ठीक है, आप समझ सकते हो, एंटी लॉक ब्रेक्स हो गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये सब एग्जांपल्स हैं एक्टिव स्टेटमेंट के सिस्टम के. तो आप इसमें मतलब ये क्या करते हैं, दीज टेक्नोलॉजीज हेल्प यू स्टे इन कंट्रोल, अवॉइड हैजार्ड्स एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू द एक्सीडेंट एंड दे कीप यू सेफ ऑन द रोड. ये एक्टिव सेफ्टी सिस्टम के बारे में हो गया. अगर हम पैसिव सेफ्टी सिस्टम के बारे में पढ़ें, तो वो सिंपली हम सीट बेल्ट डिफाइन कर सकते हैं, एयर बैग्स एंड कुशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें पैसिव सेफ्टी सिस्टम के अंदर आती हैं. तो आप ये रीड आउट कर सकते हैं. सिंपली हमें क्या करते हैं, ये फीचर्स डिज़ाइन होते हैं कि हमें एक्सीडेंट के बाद जो है मिनिमम हार्म हो. तो ये एयर बैग, सीट बेल्ट, ये सब वेल बिल्ट फ्रेम है जो कि सिर्फ हमारे एक्सीडेंट को मतलब मिनिमाइज कर देते हैं, हार्म को. ठीक है, ये सीट बेल्ट्स हैं. सीट बेल्ट्स के बारे में मैं आपको मतलब लाइक दे आर प्रोटेक्शन फॉर पैसेंजर्स इन कार. व्हेन यू फास्टन इट क्रिएट अ शील्ड लाइक दैट कीप्स यू सेफली in your seat during the sudden stops or accidents you can consider, and it helps prevent you from being thrown around inside the vehicle and minimizing the risk for injuries and keeping you securely anchored for a safer ride. ठीक है, दिस वॉज अबाउट सेफ्टी सीट बेल्ट्स. देन एयर बैग्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, लाइक व्हेन योर कार सेंसेज अ कोलिजन इट क्विकली एक्सेसेस द सिचुएशन, लाइक इफ नीडेड द इन्फ्लेशन सिस्टम किक्स इनटू एक्शन and powered by the gas generator, this airbag then rapidly inflates, creating in protective cushion to shield you from impact and minimizing injuries and adding an extra layer of safety during the crash. ठीक है, एयरबैग्स के बारे में हो गया. एबीएस सिस्टम के बारे में तो हमने अभी पढ़ा था. एबीएस क्या है इन कार्स, इट इज लाइक हैविंग अ स्मार्ट ब्रेक असिस्टेंट. व्हेन यू हिट द ब्रेक हार्ड, एबीएस स्टेप्स इन एंड इट यूजेस सेंसर्स टू डिटेक्ट इफ द व्हील्स आर अबाउट टू लॉक अप. मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम स्किड, हमारे व्हील स्किड नहीं होने चाहिए, तो एबीएस पंप क्या करता है, ब्रेक्स को सुपर क्विकली एंड अलाउइंग यू टू मेंटेन स्टीयरिंग कंट्रोल. इट्स लाइक हैविंग अ स्किल्ड पार्टनर, ऑलराइट, सो एंश्योरिंग you that you can steer away from the trouble while still slowing down effectively, especially on the slippery roads. So this was about your ABS, and yes, we are done with the chapter. So it was a huge chapter for me also to explain in one flow. So I hope you understood the chapter and I have told you like what all things you have to consider. कोई भी पॉइंट है, आपको डायग्राम निकालना है, फंक्शन लिखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. लास्ट का जो एक्टिव पैसिव सेफ्टी सिस्टम का पार्ट है, थोड़ा बहुत आप रीड कर लें. इट इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन. इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, तो इसमें आप अपनी जनरल नॉलेज भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एक्टिव सिस्टम में आपने एबीएस बता दिया, ईसीयू मतलब जो भी हमारे सेफ्टी सिस्टम्स हैं जो कि रन पोजीशन में मूविंग पोजीशन में वर्क करते हैं. पैसिव पोजीशन में, पैसिव सिस्टम में सीट बेल्ट्स, एयरबैग्स, कुशंस वगैरह हो जाते हैं. तो ये सब हम अपनी नॉलेज के ऊपर भी बता सकते हैं. एंड थ्योरी अपनी जितनी बड़ी है, हम अपनी जितना टाइम है हमारे पास उतनी लिख सकते हैं. तो आप वो एक बार अच्छे से रीड कर लें. ठीक है, एंड आई होप कि आपको पूरा यूनिट बहुत अच्छे से समझा होगा. इसमें हमने सारे व्हीकल के सिस्टम्स को कंसिडर करा, एंड जो मैंने आपको बताया क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप वो कंसिडर करेंगे फॉर पासिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट वांट यू टू जस्ट पास, आई वांट यू टू टॉप द
SME सब्जेक्ट, ओके। तो आपको समझना है हर सिस्टम को, एंड जो भी आपको समझा हो एंड जो आप वीडियो देखते हुए समझ रहे होगे ना, रिमेंबर मी कि आपको यही चीज़ें एग्जाम्स में भी याद आएंगी, ठीक है। सो एक बार आप रीड कर लेंगे ना पूरी थ्योरी, सो इट विल बी बेटर फॉर यू टू राइट। एंड आई थिंक कि आई हैव टू स्टॉप ओवर हियर एंड यस, बहुत मेहनत लगती है एक वन शॉट को बनाने के लिए। सो अगर आपको थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टिल फॉर टुडे आई विल स्टॉप हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।